Thank you, Priyanshu, for coming on today's episode of Mera Pehla Karor. I'm really, really excited to have you here. And this is a very special episode for me personally because you are my first nominated guest and first, like, one of the extremely inbound leads, I would say. So I'm really happy to have you here. And I'm really excited for our conversation because I know that you've done some really, really cool stuff in the past and you've worked with some really good brands yourself. And now you're building a really, like, I would say, fast growing company in the space that has already been saturated according to some people, but you're still killing it in the market. So I think that that's pretty interesting. I would like to know what's been your journey like, and आपने मतलब what are your plans for the future for Motorpedia? Thank you, Samad. Thanks for having me here. Really nice talking Likewise, to you. Thank you so much. So, pleasure's all mine. I'm Priyanshu. I'm working with Motorpedia in the capacity of as a co-founder. And before that, I have worked with Pristine, Car Deco, Oyo Rooms, Zostel, and so on. Even before that, I have started a couple of startups. Somehow didn't work out, and continue exploring journeys with the community, technology, and so on. Right. So, this is Uh, what. Priyanshu, let's start from the beginning. So you said that you started some startups, right? तो आप Yeah. like, and you also like went to, you were pursuing your medical degree before that. So yeah, मैं explain करता हूँ आपको how it हाँ. was. So when I was in 10th standard, I am coming from the family जहाँ पर more or less mostly family doctor है, ठीक Right. है. And so I was having a pressure कि यार you'll have to continue with the medical science. Even I wanted to be in Right. some other context because बचपन से वही देखा है, तो आपके एक माइंड में रहता है कि यार so much amount of respect, so much amount of money, right? Right. So I thought कि I'll prepare for the medical and went to Kota and all. Somehow मेरे को एमबीबीएस का सीट नहीं मिला. Okay. एंड मेरे को लगा कि फिर बीडीएस मिल रहा था. अब वो मन में रहता है कि ये सारे फ्रेंड्स तो एमबीबीएस कर रहे हैं, और आप जब Hmm. प्रिपरेशन करते हो ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि यू नो एमबीबीएस इज लाइक समथिंग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू गोना हैव इन योर लाइफ. एंड इट इज ट्रू एज वेल. Right. मेरे को लगा कि यार बीडीएस करना है, मतलब बीडीएस तो नहीं करना, मतलब माइंड में आई हाँ. आई ऑल द डेंटिस्ट एंड ऑल, मतलब नो डाउट इन दैट मैनर. बट मेरे को लगा कि यार बीडीएस तो नहीं करते हैं, मतलब नहीं सेटल डाउन होते हैं कम में, है ना. Hmm. एंड लेट्स री प्रिपेयर फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एंड विल ट्राई की एमबीबीएस मिल जाए दोबारा. हाँ. हाँ. बट मेरा क्या था, पहले अटेम्प्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए, वाज गेटिंग बीडीएस कॉलेज. देन छोड़ दिया उसको, मैंने नहीं करना, मेरे को कंटिन्यू नहीं हाँ. करना. अगेन आई गिव सेकंड टाइम बट डिडंट एबल टू क्रैक इट. तो आई थॉट कि ये तो काम नहीं कर रहा है ना. Hmm. तो आई वेंट टू कॉलेज कॉल्ड दयालबाग. Okay. तो दयालबाग इज इट इज द कॉलेज इन आगरा, है ना. इट वाज द वोकेशनल कोर्स फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड ऑल. Okay. एंड आई जॉइंड ओवर देयर फॉर अ मंथ और सो, है Okay. ना. एंड से मैंने उस टाइम मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे ही कुछ किया था फॉर मंथ और सो, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, कंटिन्यू करते हैं, विल विल कंटिन्यू फाइट फॉर एमबीबीएस. और नहीं होगा तो मतलब कम में सेटल तो नहीं होते हैं, मतलब दैट क्लियर इन माय माइंड. फिर Right. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज और रियलाइज होती है कि मैं वैसा लड़का भी नहीं हूँ कि एक रूम में बैठ के मैं थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को क्योर कर सकूं, बेटर देन कि आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ. तो आई Right. थॉट यार ये इस तरीके से तो वर्कआउट होगा नहीं. और दैट टाइम स्टार्टअप इकोसिस्टम वाज वेरी न्यू टू द इंडिया, एंड आई वाज वेरी यंग, was figuring out all the option. I was coming from tier 3. तो हमारे पास ऑप्शन ही बहुत नया नया था कि यार नए नए फोन्स और जियो का इंटरनेट आया था. हाँ. लॉट ऑफ वीडियोस. और आपको अगर किसी पर्सन को जानना हो ना, आप उसकी इंस्टाग्राम की फीड देख लो या फिर यूट्यूब की हिस्ट्री देख लो. जिस तरह की रिकमेंडेशन उसकी वीडियोस में आ रही होगी, आप डेफिनेटली मान लो सम और वो उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं Right. चल करेगा. मेरी वीडियो में मोस्टली होता था कि किसी ने कैसे फंडिंग रेज करी है, क्या कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो ऑन. तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड ऑल. Right. So I dropped my college and I thought कि I'll start something of my own. So I've started a first company. First company was name is Asto Hospitality Private Limited. So you got inspired by Oyo. Kind of, yes. Kind of. So we thought कि but उसमें मुझे उस टाइम में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यार it Hmm. is an heavy capex business, you'll have to invest so much amount of capital to हाँ. ensure the journey and everything. I thought कि नहीं, नॉर्मल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे मतलब. एंड हमने रियलाइज किया, फिर हमने इसको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके हमने स्टार्ट करना शुरू किया एंड वी वेंट टू जयपुर. वाई आई वेंट टू जयपुर बिकॉज मैंने राजस्थान में स्टडी करी थी, कोटा में एंड ऑल. आई वाज हम्म. कमिंग हैदराबाद. तो मेरे को लगा कि जयपुर इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन, मतलब ठीक है, हाँ. टू हैंड वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज यू गोना हैव इन द जयपुर. एंड वी स्टार्टेड दिस कंपनी. तो हमने पहला होटल ऑनबोर्ड किया वहां पर. द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी वाज होटल गुलाबगढ़, Okay. है ना. इट वाज अ 20 रूम्स प्रॉपर्टी. एंड हमने उनसे सिंपल कॉन्वर्सेशन करी थी, सर हम आपकी प्रॉपर्टी ऊटी पे मैनेज करेंगे. और वो थोड़ा ना, ओनर भी पेस्ड ऑफ थे ओयो के साथ, कि उन्हें ओयो के साथ इस टाइम काम नहीं करना था. अच्छा.
अपॉर्चुनिटी फॉर अस किया, ठीक है जिनको ओयो के साथ काम नहीं करना है, एंड वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी की क्या कहते हैं, हम इनके साथ काम कर सकते हैं सो ऑन। तो आई थॉट कि इट्स अ वेरी फैंटास्टिक डील ऑल टुगेदर। हाँ। हमने प्रॉपर्टी अपने अपने साथ ले ली, एंड फिर हमने सोचा कि इसको और स्केल करते हैं। देन वी हैव टेकन फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑन दी लीज मॉडल, मतलब जहां आपको हैवी रेंटल पे करना हम्म। हो, मैनेजिंग मनी एंड ऑल। अब प्रॉब्लम क्या आती थी उस टाइम, कंपटीशन था बिटवीन ओयो रूम्स एंड कपल ऑफ मोर ब्रांड लाइक फैब होटल्स, ट्रीबो। ट्रीबोज एंड सो ऑन। तो अब वो लोग रूम बेच रहे थे 700 रुपए में, 800 रुपए में। वी वर नॉट फंडेड प्लेयर, हैव रेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली काइंड ऑफ। एंड अब उसमें आप बर्निंग तो नहीं कर सकते हो यार। आपको सिंपल उस टाइम तो इतना समझ में आता था कि जी देखो 1000 रुपए का कमरा बिकेगा, 400 रुपए कमीशन में जाएंगे, 600 रुपए बचेंगे, उसमें से आप रेंटल एंड ऑपरेशन मैनेज करोगे। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू दैट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यार रियलाइज हुआ कि यार ये तो नहीं काम कर रहा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग द एमजीज एंड इवन हमारे जो जिस प्रॉपर्टी हम काम कर रहे थे, ही सेट कि ओयो मुझे मिनिमम गारंटी दे रहा है एंड सो ऑन। एंड बट वी कैन नॉट कमिट द मिनिमम गारंटी। बहुत सिंपल क्लीन मॉडल था हमारा। वी हैड रफली 7 8 प्रॉपर्टीज ऑन क्यूमुलेटिव रेवेन्यू शेयर एंड द लीज मॉडल। एंड वी रियलाइज कि यार ये तो नहीं वर्कआउट हो पाएगा, और इट्स ओके टू एक्सेप्ट योर फेलियर, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको सीखने की जरूरत है। तो वी थॉट कि यार इसको डिसकंटिन्यू करते हेलो, हैं, कैन एंड यू? नहीं चल रहा, आपकी नहीं चल रहा, आवाज़, इट्स हेलो। ओके। या एम आई ऑडिबल? आई कांट हियर यू। शुड आई ज्वाइन अगेन? एम आई ऑडिबल नाउ? आई डोंट नो हुज प्रॉब्लम दिस इज, बट आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। गिव मी अ सेकंड। आप कुछ बोलिए ना। एम आई ऑडिबल? हाँ, you're audible now. I think it's something from my end only. एक सेकंड, सॉरी। हाँ। हम्म, आपको आवाज़ आवाज़ आ रही है मेरी? बट अब मुझे नहीं आ रही है। अजीब प्रॉब्लम है। आई थिंक माई माइक some issue. I've removed my mic and now you can still hear me, right? या आई कैन। एम आई ऑडिबल नाउ? Okay, perfect. Yeah, you got it now. Sorry. ठीक है। So you were working with that like hotel, Gulab या Garden. सो वी थॉट कि यार ऐसे तो वर्कआउट नहीं होगा, इट्स ओके टू हाँ। एक्सेप्ट फेलियर एंड ऑल, एंड वी रियलाइज कि यार दिस सेक्टर हम नहीं वर्कआउट कर पा रहे हैं, एंड वी हैव शट डाउन दिस कंपनी। एंड हमने ये प्रॉपर्टीज भी ओयो को हैंड ओवर कर दी एंड सो ऑन। देन अगेन वी वर इन दी फील्ड, वर फिगरिंग आउट कि अब क्या करना है। तो एक बड़ा नया सा मॉडल था जो उस टाइम चला था अर्बन कंपनी का। हमने सोचा सिंपल सा मॉडल है, कुछ नहीं करना, हम एक कैटेगरी ऑप्ट करते हैं और टीयर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पैसे भी नहीं थे यार। अब आप कहीं भी हाँ। रहो, हैव टू स्पेंड ऑन फूड एंड अकोमोडेशन एंड ऑल। एंड घर राइट। वाले भी प्रॉमिसिंग नहीं थे, मतलब उनका था कि यार तुमने एजुकेशन लेफ्ट करी है तो अब तुम खुद ही फिगर आउट करो। एंड मैं बहुत ज्यादा फेवर में भी नहीं एजुकेशन लेफ्ट करेंगे, मतलब ठीक है, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच आई वाज गेटिंग इट। फिर मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह अपना कंटिन्यू करना शुरू किया एंड सो ऑन। हम्म। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अनदर कंपनी, है ना। हमने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, वी वर जस्ट रनिंग एट लाइक नॉर्मल एज अ प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ, और हमने उसका नाम रखा लाइफ सर्विसेज। हमने सोचा उसमें ओके। वाटर प्यूरिफायर रखेंगे, देन कुछ मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज लेके आएंगे, तो वी स्टार्टेड विद वाटर प्यूरिफायर। हम जी बोलते थे जी आप हमसे सर्विस कराओ, हम आपको 3 महीने की वारंटी देंगे, और कुछ भी होगा तो हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेंगे। और वी वर चार्जिंग ओनली 100 150, मतलब क्लोज टू $2। अब राइट। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है यार, आपके पास इनिशियल ट्रैक्शन इतना था, हमारे पास भी हमें फोन उठाने का टाइम नहीं था। वी वर मेकिंग वेरी हम्म। डिसेंट। हम हमारे घर वालों को बोलते थे ये 70 80 हजार रुपए बन रहे हैं, बहुत बढ़िया धंधा है, इसको कंटिन्यू करेंगे और उसको बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे। उस हाँ। टाइम बैक ऑफ द ब्रेन कैलकुलेशन तो होती नहीं है कि आप कैसे करोगे, कैसे लेके आओगे। अब 3 4 महीने जैसे हुए, हमारे शहर, आई वॉज कमिंग फ्रॉम फिरोजाबाद, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो थोड़ा पॉल्यूशन हम्म। तो रहती है पानी के अंदर, टीडीएस भी हाई हो जाता है पानी का। तो 3 4 महीने में लोगों के प्योरीफायर में प्रॉब्लम आ गई। अब दे कॉल्ड अस कि जी आपने तो प्रॉमिस किया हुआ है, आपने तो जी वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है, आप हमारी इसकी हाँ। सर्विस। हमारा मॉडल कैसा था, हमने हमने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था, या फिर हमने बोला था जी कमीशन शेयर करेंगे, वी आर गेटिंग 100 bucks, वी विल शेयर विथ यू 60 70 रुपीज एंड वी विल चार्ज 30 रुपीज, एंड सारे हाँ। प्रॉमिस हम डिलीवर करेंगे। हाँ। तो एजेंट के लिए भी फायदा था, उस टाइम कस्टमर के लिए भी फायदा था, बट एज अ कंपनी दैट वाज नॉट अ गुड बिजनेस टू बी इन। राइट। 3 महीने तक हमने बहुत डिसेंट पैसा बनाया, 3 4 महीने तक। देन हमने ब्लीड करना शुरू किया। हाँ। लीड करना शुरू किया कि बहुत सारे फोन आने लगे जी हमारी ये सर्विस करो। हम्म। अब हमने जो पैसा सेव किया था, अब वो सारा डिप्लॉय होने लगा। देन वी रियलाइज कि यार राइट। ये ना ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज ये तो काफी ब्लीड करने वाला मॉडल है। वी हैव टू फिगर आउट कि इसमें और क्या स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है। राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतने कॉल्स आने लगे, इतने कॉल्स आने लगे कि नए कस्टमर हमारे पास आ नहीं रहे थे, पुराने हमसे हाँ। छूट रहे थे। तो फिर मेरे को राइट। लगा कि यार ये भी धंधा काम नहीं कर रहा, एंड इट्स ओके टू एक्सेप्ट कि आप उसमें मतलब उसको शट डाउन करो।
एंड यू हैव टू लर्न मोर. सो दैट टाइम राइट। आई थॉट कि अब जॉब करते हैं. अब आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज. ठीक है. आई वाज फिगरिंग आउट कि कैसे ऑप्शन मिलेगा मेरे को. सो मैंने कम से कम, यू वोंट बिलीव, थाउजेंड्स ऑफ कोल्ड ईमेल मैंने लिखे होंगे. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फाउंडर, टॉप लीडरशिप ऑफ द कंपनी. मेरे को लगा एक तो अपॉर्चुनिटी मिली जाए. और मेरी मेल में भी बड़ा उस टाइम सिंपल सा टास्क होता था, मुझे उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं पता था उस टाइम. तो आई हाँ। थॉट इसमें लिख दूंगा कि जी मुझे फूड एंड अकोमोडेशन मैनेज हो जाए मेरा, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा. तो वो राइट। लाइन आई थिंक इन सम और अदर कॉन्टेक्स्ट बहुत नेगेटिव भी होती है ना. तो बट आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम डीवी, हु इज द फाउंडर ऑफ जॉस्टल एंड जोवर्ट राइट नाउ. उन्होंने बोला राइट। ठीक है, आई कैन हेल्प यू एंड पिंग यू ओवर व्हाट्सएप. तो मेरे को पहले किसी को फाउंडर का नंबर मिला था. मैंने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ टेक्स्ट किया एंड आई सेड कि आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शन विद जॉस्टल एंड ऑल. तो ही सेड कि ठीक है, आई एम राइट नाउ नॉट विद जॉस्टल. आई वाज ही वाज समथिंग फिगरिंग आउट समथिंग डिफरेंट. एंड तो उन्होंने मुझे ओके। जॉस्टल के किसी रिलेवेंट बंदे से कनेक्ट किया. He said कि यार you'll have to manage the property, you'll have to learn from the property first, then we'll figure out the role and it will be kind of internship for you. And he said कि या। क्या स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. ऑनेस्टली उसामा, मेरे दिमाग में कोई फिगर नहीं था. मतलब जीरो. राइट। मतलब इफ यू कुड हैव टोल्ड मी आई विल गिव यू लेट्स से ओनली $100, आई सेड ओके. मतलब हाँ। आई वाज इन दिस सिचुएशन. तो ही हैज ऑफर्ड मी काइंड ऑफ अ डिसेंट अमाउंट and offered me like food and accommodation along with it. So I thought कि it's a very good opportunity सही and बात है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं. और सेकंड ऑप्शन था कुछ है भी नहीं आपके पास, तो यू डोंट हैव ऑप्शन टू चूज. So I have राइट। joined Zostel and there was a, again I went back to Jaipur. So there was a property ओके। in Zostel Jaipur. तो मैंने उस प्रॉपर्टी को ज्वाइन किया एंड हम पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ समझ रहे थे कि यार बैकपैकर कल्चर क्या है, हॉस्पिटैलिटी कैसे काम करती है, आपको कितनी हम्बल होना है गेस्ट के साथ, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल टुगेदर, हाउ टू रन दी ऑपरेशंस, मैनेजिंग दी एवरीथिंग एंड ऑल. सॉरी. तो ये नो सारा वरीज। टेक्स्ट हमारा क्लियर था उस टाइम. अब मेरी जो दो लर्निंग थी ना दो कंपनीज की, बिकॉज मैंने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस रन किया था. हाँ। आई न्यू कि आप ओटीए कैसे मैनेज करते हो, आई न्यू बेसिक ऑपरेशन कैसे मैनेज होता है. हाँ। क्योंकि लीज पे भी लेके प्रॉपर्टी चला रहे थे, तो हमको पता था कॉस्ट सेविंग भी कैसे करनी. हाँ। तो बेसिक बेसिक धंधा क्लियर था. और तो मेरे को लगा हाँ। कि तो पॉलिश हो जाएगा. तो वहां से मेरी एक स्किल पॉलिश हो गई कि यार बी टू बी में आप कैसे डील करते हो, जब आपको लार्जर क्लाइंट एक्सपोज मतलब सॉरी डील करना होता है, हम्म। तो आप कैसे बात करोगे उससे, क्या समझोगे, क्या पिच करोगे, है ना. एंड मैं एक बहुत लाइन से इंस्पायर्ड था फ्रॉम ओयो की देखिए जी, नुकसान हुआ तो मेरा, नफा हुआ तो मैं और आप शेयर कर लेंगे. तो मेरे को लगा दिस इज वन ऑफ सही द बात है। बेस्ट टू पिच टू एनी काइंड ऑफ कस्टमर कि जी सर नफा हुआ तो मैं और आप शेयर करेंगे, नुकसान हुआ तो पूरा मेरा. तो राइट। बहुत क्लियर था इस थॉट पे मैं. एंड देन आई वेंट टू हॉस्टल. हॉस्टल टाइम काफी न्यू था बैकपैकर कल्चर में, तो कई सारे लोग आते, तो मेरे को नेटवर्किंग की भी काफी अपॉर्चुनिटी मिली उस पॉइंट पर. राइट। आपके सबसे इंटरेस्टिंग इंसान से किससे मिले? कोई मिला आपको ऐसे बैक पैकिंग क्या. करते हुए? बैक पैकिंग करते हुए कोई इंटरेस्टिंग इंसान मिला आपको यार देयर हॉस्टल आर में? कपल ऑफ पीपल, मतलब काफी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनसे काफी अच्छा सर्कल बना. एंड किसी ने तो मुझे शायद मुकुल के साथ भी कनेक्ट किया था. मुकुल वाज, मुकुल शाह। या मुकुल शाह. आई स्टिल राइट। रिमेम्बर. मतलब मेरा मुकुल का डिस्कशन लिंक्डइन पर हुआ. एंड आई थॉट कि चलो फिर मिलते हैं मुकुल से. आई वेंट टू गुड़गांव एंड ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन. तो हमारा काफी डिस्कशन हुआ एंड ऑल. मुकुल से काफी अच्छी फ्रेंडशिप, वो तो काफी रिलेशंस बने. देन आई थॉट कि अब फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाता है कि यार आपको सही है, मतलब थोड़ा वैल्यू मिल रहा है. एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ओयो एंड इट वाज अ वेरी हैंडसम अमाउंट. एंड मैं तो सोच रहा था कि मेरे लिए तो यार उसामा हमेशा ऐसा था कि यार जॉसल इज दी ओनली लास्ट जॉब, क्योंकि मुझे जी इसके बाद नौकरी मिलनी नहीं है. तो इस जॉब को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अगली का पता नहीं. हाँ। जब मुझे ओयो में अपॉर्चुनिटी मिली, तो ओयो वाज अ वेरी बिग नेम, स्टिल इज अ वेरी बिग नेम हाँ। इन 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर 1 ईयर ऑफ जॉसल. तो मेरे को लगा कि यार यार ये तो बहुत सही अपॉर्चुनिटी है. मतलब यहाँ अगर काम नहीं कर पाए तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे, और पता नहीं सही मौका बात है। मिलेगा. तो आई वॉज देयर क्लोज टू ईयर. एंड फिर मैंने अपना एमबीए भी कंप्लीट किया एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. उसके बाद फिर सेम द कोविड हैपेंड एंड हाँ। अगेन कि जॉब एक्सप्लोर करते हैं. एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ ओयो. फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट इम्पैक्टेड विद एनी काइंड ऑफ ले ऑफ एंड ऑल. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दी कार देखो. और या। कार वो बहुत सिंपल था. आई तो मेरा जॉब का हमेशा सिंपल रहा है. मतलब आई रीच आउट टू पीपल, है ना, और लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड भी आ जाता है. समहाउ आई वाज लकी, या फिर शायद मेरे एफर्ट्स ज्यादा थे सही कंपैरेटिवली. डायरेक्शन में थे। हाँ. तो कार देखो में भी था. कार देखो में सिंपल था कि यार
शायद आई वाज रीचिंग आउट कपल ऑफ पीपल एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद कार देखो. आई हैव जॉइन्ड देम इन द जयपुर. दैट टाइम दे वर नॉट अ बिलियन डॉलर कंपनी. दे वर ओके. क्लोज 500-600 मिलियन डॉलर. तो मैंने वो जर्नी देखी कि यार आप 500 से बिलियन डॉलर पे कैसे पहुंचते हो. आई स्टिल रिमेम्बर कि वो अमित ने सेलिब्रेशन कैसे किया था एंड सो ऑन. आई वाज देयर क्लोज टू 2.5 years समहाउ. एंड बहुत कुछ राइट. सीखा यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बहुत कुछ सीखा मतलब इमेंस अमाउंट ऑफ लर्निंग. एंड वहां पर फिर मेरा मतलब मैं जिनको रिपोर्ट करता था रजत उपाध्याय. ही वाज माय मैनेजर इन द कार देखो एंड ही इज द को फाउंडर एंड द सीईओ फॉर मोटरपीडिया आल्सो. सो बहुत सीखने को That's मिला great. मतलब. मैं लर्निंग को शायद वो एक कंपाइल नहीं कर सकता कि यार कितनी चीजें सीखने को मिली. तो पहली कंपनी से समझ में आ गया कि आप B2B में डील कैसे करते हो. आपको कैसे हम्म. क्लाइंट के साथ एक्सपेक्टेशन रखनी होती है. जब हमने लाइव सर्विस स्टार्ट किया था वी फिगर्ड आउट कि आपको अपने प्रोमिसेस डिलीवर करने होंगे. नहीं करो राइट. ये धंधा बहुत छोटा टाइम है. मतलब आप 2-3 महीने में एग्जिट राइट. कर पाओगे इस चीजों से. तो ओवरऑल मेरी ये लर्निंग रही कार्डिको से कि यार फिर हमने प्रोसेस ऑपरेशंस SOP एक ऑर्गेनाइज वे में सेल्स करना है लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो काफी सारी चीजें सीखी. एंड इन 3 कंपनीज में काफी स्मार्ट ब्रेन के साथ काम किया. वो मतलब हु डिड राइट. समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ either in the education or in the business sector and so on. राइट. काफी लोगों से कनेक्शन हुआ. हैव अटेंडेड कपल ऑफ स्टार्टअप इवेंट एंड सो ऑन. बट बैक ऑफ द ब्रेन तो यही था यार कुछ अपना ही करते हैं. मतलब हाँ. निकल रहे एंड ऑल. बट मुझे और ये पूछना है, हाँ एक चीज हाँ. पूछनी है मुझे कि कार देखो का बिजनेस मॉडल है क्या इन जनरल, लाइक हाउ डू दे अर्न? सो टेक्निकली आई वाज इनटू द यूज्ड कार बट वर्टिकल. हम तो हमारा सिंपल था. वी प्रोक्योर्ड कार. फिर हम उसको रिफर्व करते हैं. देन हम कस्टमर को बेचते हैं. पॉइंट ए. पॉइंट बी हम उसको प्रोक्योर करते हैं या डीलर को बेचते हैं. तो उसमें कुछ ट्रेड मार्जिन हम अपने लिए डिप्लॉय करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव क्लासिफाइड बिजनेस टू कि क्योंकि उन पर ट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो वो उस पर डीलर की गाड़ियां लिस्ट करती हैं यूज्ड कार की एंड वो डीलर को पैकेजेस बेचते हैं. उनके एवरेज में उनको लीड्स मिलती हैं एंड सो ऑन. ये हम्म. क्लासिफाइड है. सेम उनकी OEM से भी पार्टनरशिप है कि यार हम आपको बहुत सारी लीड्स चला के देंगे आपके स्टोर पे. दिस इज काइंड ऑफ द मॉडल. कंप्लीटली एसेट लाइट मॉडल है कार देखो. ओके. मैं उनके अपना कुछ वो नहीं है ऐसा कभी. हाँ. अब ये पहले एसेट था. अब उन्होंने एसेट लाइट पे पूरा मूव कर दिया है. सो दे हैव कपल ऑफ ब्रांड्स अंडर द नेम ऑफ. राइट. इंश्योरेंस देखो भी उनका ही है. इंश्योरेंस देखो भी उनका ही है. करेक्ट. इंश्योरेंस देखो भी उनका ही है. फिर आई थॉट कि और जॉब में एक ऑप्शन तो बहुत क्लियर था यार. मेरे को हमेशा लगता था यार ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है मुझे. इसमें राइट. कर पाऊंगा तो आगे तो कंफर्म नहीं मिलना. हाँ. एंड आई वाज ब्लेस्ड कि फिर मेरे को कार देखो के बाद मेरे को लगा कि थोड़ा हैवी ऑपरेशन सीखते बिकॉज मेरा रोल मेजरली इनटू दी सेल्स रहा इन सारी हाँ. कंपनीज में इंक्लूडिंग माय ओन स्टार्टअप एज वेल. सो हाँ. आई टू प्रिस्टीन केयर. और मैं बहुत सोच के गया था कि मुझे ऑपरेशन भी करना है बिकॉज मेरा हमेशा रहता था. आई एम सो सॉरी टू यूज दिस स्लैंग. फक द ऑपरेशन गेट द नंबर डन. आई हाँ. डिड इन माय लाइफ. तो वो प्रिस्टीन में सेल्स में होता है थोड़ा सा. हाँ हाँ मतलब प्रेस्टीन में मैं था तो प्रेस्टीन में बहुत क्लियर था कि यार कि बिकॉज इट इज एन हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना. आप थोड़ा सा संभल के चलो बिकॉज यू हैव टू इंश्योर डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल एंड सो ऑन. हम्म. तो आप कोई भी बाईपास नहीं कर सकते किसी भी चैनल को. हाँ. प्रेस्टीन में आई वाज देयर क्लोज टू ईयर एंड प्रेस्टीन में काफी ऑपरेशन सीखने को मिला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड राइट. अगेन बैक ऑफ द ब्रेन वी वर वेरी क्लियर. हम काफी चीजें फिगर आउट कर रहे थे. मतलब यू वोंट बिलीव. हमने चाय की दुकान से लेके हमने हमने B2B स्टार्टअप इंटरनेशनल ट्रेड APIs इन फार्मा एंड सो. कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जिस पर हमने रिसर्च नहीं करी हो. मतलब कि यार एक माइक्रो लेवल. प्रिस्टीन के टाइम पे. हाँ मतलब काफी रिसर्च किया था हमने प्रिस्टीन में भी कार देखो में सो ऑन. हाँ. तो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट ही होता था कि यार देखो ये कर लेते हैं ये सही अपॉर्चुनिटी है. फिर हम उसकी रिसर्च करते थे कि यार देखो इसमें ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये बन सकता है ये बन सकता है ये बन सकता है एंड सो ऑन. हम बहुत 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 रिसर्च कर मतलब आप मेरे से किसी भी इंडस्ट्री में बोलोगे तो मैं शायद आपको टेंटेटिव आंसर बता पाऊंगा कि देखो जी ट्रेड ऐसे होता है ये ऐसे होता है और ये चीज ऐसे हो रही है. तो उससे भी राइट. आप क्यूमुलेटिव लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. राइट. जस्ट वो श्योर. पर्सपेक्टिव मिल जाता है ना आपको कि मतलब बाहर अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और फिर आपने जब किसी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हो तो फिर आप पार्टनर से भी मिलके आते हो जो लोग उस है. इंडस्ट्री हाँ. में डील कर रहे हैं. आपको समाउ मैक्रो लेवल पे एक्सेस नहीं मिलता. पहले आप छोटे लोगों से डील करते हो. आप समझते हाँ. हो कि उनकी वैल्यू कैसे है वैल्यू प्रॉप क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर. फिर आप उस पर कुछ कुछ मॉडल रिकॉग्नाइज करते हो टेक को एनेबल करते हो राइट. एंड सो ऑन. तो आपका एक्चुअली मुझे लगता है ना सबसे बेस्ट कॉलेज है यार. मतलब अगर आपको सीखना है ना आप अपने दिमाग में 50 आइडिया सोच लो. ठीक है. और मतलब देखो यार जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते होंगे एग्जीक्यूशन मैटर मैं भी मानता हूँ. बट मेरे को लग रहा है कि अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ है तो अपने दिमाग में 50 आइडिया सोच लो कि जी मैं 50 आइडिया पे काम करूंगा.
आप 50 आईडी पे रिसर्च करना शुरू करो। ट्रस्ट में आपको पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी एवेटा वेटा सब समझ में आ जाएगा। आपको सही, सिंपल। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मतलब इतनी सिंपली आपने पुट किया है चीज को, मतलब आई कुड नॉट लाइक, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट आई अग्री विद दिस सो मच कि सोचना भी तो एक स्किल है, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स टू बिकम सक्सेसफुल, बट करेक्ट। वो सबसे पहले तो सोचने से स्टार्ट होगा ना। हाँ मतलब ब्लाइंडली, मतलब आपने सोचा कि जी मैं तो पेपर बेचूंगा और मैं तो पेपर डाल दी, तो उसमें इतनी लर्निंग से बेटर एक बार सोच के देखो कि यार पेपर कहाँ फॉर्म हो रहा होगा। क्या मैं पेपर कस्टमर को बेचने की जगह फैक्ट्री को बेच दूं? मतलब पूरी इंडस्ट्री को जब आप सोचोगे ना, तो आपका ब्रेन काफी काम करता है। और मतलब और स्पेसिफिकली आप, फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम टियर 3, आई वाज कमिंग फ्रॉम हाँ, टियर 3 स्टिल। तो बहुत क्लियर है, आपको सीखने के लिए यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब मेरे लिए तो बहुत टफ था उसामा कि यार मैं लोगों को रीच आउट करूं कि जी मुझे आप समझा दो कैसे होती है। राइट, मतलब, और एक ना बहुत सही चीज है, अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर रहे ना, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। दैट्स एग्जैक्टली exactly. वो तो यार आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि आप वोटिंग वाले भी, कोई भी इलेक्शन सोच लो, इलेक्शन में कैसे होता है कि मतलब यू, देयर इज वन वोट दैट यू कैन ऑलवेज गिव योरसेल्फ, यू विल करेक्ट। ऑलवेज हैव वन वोट एंड दैट इज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद को वोट नहीं दे रहे तो आप मुझे क्यों वोट दोगे? राइट 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 राइट। आपको खुद पे भरोसा नहीं है। करेक्ट। तो मेरा मेरा तो बहुत क्लियर था यार कि मतलब कि हम तो सारी चीजें ट्राई करते हैं। और और थोड़ा मुझे मेरे पेरेंट्स से भी काफी सपोर्ट मिला इस चीज में। तो व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड ना, तो थोड़ा सा होता है कि आप 11th में नए नए खुलते हो, हाँ। और आपको लगता है कि यार आपके घर वालों को आपकी संगति भी पसंद नहीं आती। सारे पेरेंट्स का यही होता है कि यार नहीं यार तुम तो गलत लोगों के साथ घूम रहे हो, सो ऑन। तो आप तो तुम्हारी। कोटा भी चले गए थे। हाँ मैं कोटा भी चला गया था। तो मैं गया था कोटा एक इंसिडेंस के बाद। सो आई वाज इन द 11th स्टैंडर्ड एंड माय पेरेंट हैज रियलाइज कि नहीं। आई वाज, मतलब मैं शायद आगरा पढ़ रहा था उस टाइम, मतलब अगेन इट हम्म। वाज कोचिंग ओनली। तो मेरे को लगा कि हीरो को नहीं नहीं यार यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, तुम कोटा जाओ। है ना। उससे पहले हम्म। एक और इवेंट हुआ था मेरी लाइफ में ना, तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुम्हें पॉकेट मनी कुछ नहीं मिलेगी। है ना। तो ओके। वो गिन के पैसे मिलते थे कि मेरे को फिरोजाबाद से आगरा जाना है, तो विल बी गेटिंग 100 रुपीज। 50 रुपीज आपको फिरोजाबाद से आगरा की बस के, आगरा से फिरोजाबाद के गेटिंग 20-30 रुपीज एडिशनल। दैट्स ऑल। तो मुझको लगा कि यार ये तो टफ है। तो फिर एक और चीज रियलाइज की, तो हमारे घर के मतलब जो भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे वो सब लोकल होम टाउन में थे। आई थॉट कि दवाइयाँ बेच लेते हैं, बचपन से देखा भी था। तो हमने क्या किया, होलसेलर से ना कुछ इंजेक्शन खरीद लिए, हम्म। सेफ्ट्राइक के। और हमने बोला, मैं अपने कुछ चाचा के पास गया, पापा के पास गया कि जी आप ये ना 5 इंजेक्शन निकाल दीजिएगा, तब मैं मेडिकल स्टोर से पेमेंट ले लूंगा। मतलब हम्म। 16 साल का बच्चा मेडिकल स्टोर को बोल रहा है कि जी ये 5 इंजेक्शन लिख लो, डॉक्टर साहब पर्चे पे लिखेंगे, जब बिक जाए तब आप मेरे को पैसे दे देना। हम्म। एंड इट वॉज अ गुड मार्जिन ऑल टुगेदर, मतलब वो तो पैसा ही आपको मिल रहा है। और उस टाइम पता हाँ। नहीं होता है, लेकिन वो भी देखो, जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना वो बड़ा सपोर्ट करते हैं जी एक दूसरे को। तो उन्होंने सोचा हाँ। कि कुछ करना चाह रहा है तो मैं 4 इंजेक्शन तो रख ही लेता हूँ। है ना। और उन्होंने मेरे से ये भी नहीं पूछा जी मेरे को ये भाषा, मतलब आप सोचो होलसेलर की दुकान भी मेरी शहर के अंदर है, एंड मैं 4 इंजेक्शन में मेडिकल स्टोर वाला भी चाहता हूँ होलसेलर से खरीद सकता है, बट हाँ। सपोर्टेड मी इन दैट साइकिल किया यार नहीं ये काम करते हैं, तुम रख लो और बिक जाएंगे तो मैं हम्म। ले लूंगा। तो ऐसे ना मैं मेडिकल स्टोर पे जाके पूछता था, अंकल आज बिका क्या कोई इंजेक्शन?" कहते नहीं लिखा। नहीं लिखा तो फिर मैं ऐसे चाचा की दुकान पे या पापा की दुकान पे जाता कि अरे एक तो लिख दो, दो तो लिख दो कम से कम। आई वाज लिटरली बैगिंग फॉर इट कि यार लिख दो। एक चीज समझ में आती है कि B2B साइकिल इज नॉट इजी। मतलब हाँ। आपको कीप फॉलोइंग दी चैनल पार्टनर की, सर लिख दो या आप हम्म। खरीद। इट इज अ पुश सेल्स ऑल टुगेदर। हम्म। या। इट इज अ पुश सेल्स ऑल टुगेदर। तो आई हैव रियलाइज कि क्यूमुलेटिव ऐसा कर लेते हैं। तो हाँ। वो क्या हुआ, कुछ 2-3 महीने एंड वर मेकिंग ओनली कुछ 5-6-7 हज़ार रुपए टाइप महीने। मतलब इससे ज्यादा हाँ। पैसे भी नहीं होते थे इन्वेस्ट करने के लिए, हाँ। और कोई देगा भी नहीं पैसे। बट मेरे घर वालों ने इस चीज को काफी अप्रिशिएट किया, मतलब ठीक है। बट अगेन यू हैव कुछ तो टू, कमाया। कुछ तो कमाया। उन्हें पता ही नहीं था ना मैं कमा रहा हूँ। तो मैं पापा के हाँ। पास काफी लेट गया था, मैं बाकी फैमिली के लोगों के पास गया था। और अच्छा, अच्छा। उनको लग रहा था कि ठीक है यार शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, तो ये बच्चा कुछ कर रहा है तो करने देते, इट्स ओके। हम्म। बट वो लर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। मेरे लाइफ में तो पहला कॉन्फिडेंस तो हट ही गया कि यार ये बेचना कैसे, तो बेच ही लेंगे। मतलब सोच के तो प्लान नहीं किया था वो कुछ भी, बट वी वर मेकिंग कुछ 4-5 हज़ार रुपए होंगे, इफ आई एम नॉट क्लोज टू $100। देन फिर घर वालों को लगा कि नहीं यार ऐसे तो लाइफ खराब हो जाएगी, यू हैव टू गो टू कोटा। हम्म। आप थोड़ा सा यहाँ से। फिर मैं कोटा चला गया। कोटा आई वाज देयर, फिर स्टडी कर रहे थे। यही सब चलता रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कोटा लर्निंग, वर्थ इट है। मुझे लगता है कि तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट रही इन रिलेशन टू दैट। राइट, कोटा वर्थ इट है। यार कोटा का एनवायरनमेंट कैसा है? देखो, ऑनेस्टली बोलूं, यार मेरा बहुत, मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ टियर 3 टियर 2 की जनता से।
ठीक है। हम्म। अगर आपको एक्सपोजर चाहिए है ना, तो मैं मेरा मानना है कि जी आपको किसी एक मेट्रो सिटी या फिर टीयर 2 सिटी में तो जाना चाहिए। क्योंकि हम्म। होता क्या है ना, आप जब छोटे शहर से आते हो तो आपकी काफी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है ना, वो हाँ। पैसा एक दूसरे में घूम रहा होता है टेक्निकली, तो आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो भी थोड़ी यार सॉलिड हो जाती, मतलब सॉलिड कह रहा हूँ सॉरी, थोड़ी रिजिड हो जाती है कि उसी में आप रोटेट कर रहे हो। इधर आप हम्म। देखो, या तो आप कॉलेज चले जाओ, है ना, हम्म। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, गो टू दी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, यू विल गेट एन एक्सपोजर। दूसरा ऑप्शन है जी, आप अब जैसे मेरे यहाँ कांच बनता है, तो आप ना एक्सपोर्ट वाले लोगों के साथ बैठोगे तो यूल बी गेटिंग इंटरेक्शन, हाँ। काफी अलग स्टेट और कंट्रीज के लोगों के साथ डील कर रहे हो, तो आपका ब्रेन खुलता है, राइट। तो हम्म। एक एज होती है ना, मतलब प्रोबेबली 16 to 25 वाली, जितने लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना तो आपको उतना स्मार्ट बनाएगा। मतलब हम्म। आप समझ के देखो, तो मेरे लिए मैं बोलता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली 11th या 12th एक साल कोटा जाना चाहिए। इधर अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट है तो भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो। आप देखते हो जिस बंदे से आप बात कर रहे हो वो एक अलग स्टेट का है, अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है। देयर विल बी अ पीपल कमिंग फ्रॉम वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम दी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। आप दोनों की अपॉर्चुनिटी, आपका ब्रेन उसी अकॉर्डिंग डेवलप होता है कि हम्म। जी खर्चा तो 15,000 में भी चल सकता है और जी खर्चा $100 में भी चल सकता है। यू हैव टू फिगर आउट दी हम्म। बैलेंस। तो मुझे लगता है मेरा पर्सन, मैं तो अपनी पूरी फैमिली में बोलता हूँ, बच्चा पढ़ने में होशियार हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसको कोटा भेजोगे या किसी और शहर में भेजोगे जो टेक्निकली थोड़ा सा बड़ा है आपके शहर से, तो जी बच्चा कुछ बन के आएगा आपके सामने। और हम्म। अगर आप देखो एक चीज और देखना उसामा ना, मतलब वी आर वेरी यंग कंट्री, राइट, एवरेज एज मस्ट बी 26 27। हाँ। हमारे यहाँ जो एक हर शहर में बच्चे होते हैं जो बहुत एक क्लोज्ड कमरे के अंदर स्टडी करते हैं, इट कुड बी फॉर हम्म। यूपी और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। अगर वो एग्जाम में एक्सेल कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऑनेस्टली हम्म। सल्यूट उस एफर्ट और हार्डवर्क को। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो समझो ऐसा नहीं है उनके पास नॉलेज नहीं है, बट वो उसको हम्म। भी कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब किस वे में करें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनको ऑप्शंस भी नहीं पता होते हैं, है ना। हम्म। आप और इंटरनेट का भी सीन ऐसे है ना, मतलब इंटरनेट इज गुड फॉर एवरीथिंग, बट हाँ। पॉइंट है कि इंटरनेट फकिंग एडिक्टिव। मतलब आपने कोई हम्म। फीड देखना शुरू किया और आपका इंटरेस्ट बन गया, तो उनका एल्गोरिदम ही ऐसा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, आपको वही फीड कंटिन्यू आते रहेंगे। लेट्स से हम्म। आप जो बैक इन 2015 16 17 व्हेन हम्म। एवरीथिंग न्यू, मेरे को कुछ क्या कहते हैं, कुछ सेशन अच्छे लगे भावेश अग्रवाल के, रितेश के, एंड सो ऑन, कपल ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे अच्छा लगा जी ऐसे पैसे बन सकते हैं। दिमाग में तो देखो सिर्फ उतना ही था, मतलब कि इन्होंने बहुत हम्म। कम एज में कैसे सक्सेस हासिल करी है, राइट। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बना। लेकिन सोचो अगर मेरा इंटरेस्ट बनता किसी और चीज में, मतलब इट कुड बी कुछ भी हो सकता है यार, है ना, तो मैं शायद उस वे में, तो अगर कोई ड्राइविंग फोर्स है जो आपको ड्राइव कर रहा है तो आप देखो उसी डायरेक्शन में जाओगे। आपके हम्म। सामने आ रहे हैं कि आपके सामने जो कंटेंट आ रहा है वो, लेट्स से अगर मैं किसी और वे में बोलूं, नेट से कोई नेगेटिव कंटेंट चल रहा है और आपके ब्रेन को वो अच्छा लगने लगा, तो आपको नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आर दी ड्राइविंग फोर्स, वो आपको उसी डायरेक्शन में मूव कराएंगे। आपको इतना राइट। कंटेंट मिलेगा, तो इससे बेटर है ना इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, बट ब्रॉडर माइंडसेट, मतलब जितने ज्यादा लोगों के साथ आप बैठोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दो बच्चे लेते हैं, दोनों बच्चे हैं, एक बच्चा कोटा गया, ठीक है, वो बहुत इंटरनेट पे चीजें देखता है ना, हम्म। और लेट से वो एडिक्टिव हो गया है किसी भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेके, विच कैन बी पॉसिबल ऑन इंटरनेट, हम्म। ठीक है, राइट। कोई सेंस नहीं बन रहा उसके फ्यूचर के लिए उसको, एंड वो कोटा चला गया। वो कोटा में जाके क्या होगा जी, उसको चार और लोग मिलेंगे, ठीक है, इट्स ओके, ये हम्म। मानते हैं वो पढ़ने में अच्छा नहीं है बच्चा, ठीक है। एक तो उसको दिखेगा कि देखो यार मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं, तो मैं कोचिंग बंक कर देता हूँ, सोन तो बंक करके क्या करेगा, गेमिंग स्टूडियो जाएगा और कहीं जाएगा, घर वाले, हम्म। तो ये होगा, वहां पे चार अलग लोगों से मिलेगा, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो चार लोग कुछ और कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे। तो वो हम्म। बोलेगा कि आपका कंटेंट कैसा है, मैं एक बार देख के देखता हूँ, आपका कैसा है मैं देख लेता हूँ, हम्म। तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में और चार चीजें आएंगी। तो एटलीस्ट पहले हम्म। तो एक ही ऑप्शन था, अब चार आ गए, तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई। वर्सेस एक दूसरा बंदा लेते हैं जी, वो कोटा नहीं गया, वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट है, और उसको लेट से कोई कंटेंट आ गया कि यार उसे तो लग रहा है कि जितने भी, जैसे कोई भी, आई विल नॉट टेक द नेम, बट नेगेटिव नेगेटिव एंटी सोशल एलिमेंट उसके सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, कि जी गैंग है, ऐसे मार दिया लोगों को, हम्म। अब हाँ। उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है जी चार लोग एक्सप्लोर करने के, वो तो उसकी दुनिया तो उतने में ही लिमिट हो गई, और वो पढ़ने में भी एवरेज है, तो वो हमेशा उसी भी डायरेक्शन में चलेगा। अगर आप, क्योंकि अब इंटरनेट इज अ ड्राइविंग फोर्स, देन आपको हमेशा अपना जो सर्कल है वो काफी बड़ा करना पड़ेगा इफ यू वांट टू हम्म। एक्सेल, मेरा मानना है। और मतलब मुझे लगता है कि
दिस पर्सपेक्टिव इज ट्रू फॉर राइट, एवरी, मतलब राइट, आई कम्प्लीटली एग्री। मतलब आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल, वो बबल वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, आई थिंक दैट इज व्हाई हाउ पीपल स्टार्ट लिविंग इन देयर ओन बबल्स। कि जैसे पोलराइजेशन का जो आता है इलेक्शंस के टाइम पे जो होता है, करेक्ट तो करेक्ट। राइट विंग वाले लोग सिर्फ राइट विंग की वीडियोस देख रहे हैं, लेफ्ट विंग वाले लेफ्ट लोग वाले सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट वाले विंग की देख रहे हैं। वीडियोस, करेक्ट सेंट्रिस्ट करेक्ट। जो सेंट्रल लोग हैं वो सेंट्रल वीडियोस देख रहे हैं, कि मतलब दे जस्ट लाइक वी न्यूट्रल, फिर ए पॉलिटिकल वगैरह, तो उनको सिर्फ उसी टाइप के। सो everyone is living in their own bubbles. Right wing thinks that they're right, left wing thinks that they're right, and centrist think that they're right. So राइट। कोई भी, बट एजुकेशन का तो फायदा ही नहीं हो रहा ना आपका। अगर करेक्ट। आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे, आप तीन लोग बैठे हो लेफ्ट राइट और सेंटर, और फिर आप तीनों लड़ लो रादर देन बात कर लो, तो दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहते हैं उसको, पोलराइजेशन। कि आप अपने कंटेंट से इतने कंज्यूम हो चुके हो कि आपको कुछ और, आपको इतना सोशल प्रूफ मिल चुका है ना, कि आपको लग रहा है कि भाई मैं ही ठीक हूँ, 100 फेयर। लोगों के साथ ये हो रहा है। तो करेक्ट बट आप ये नहीं समझ रहे कि देश में 150 करोड़ लोग हैं। करेक्ट करेक्ट। आपको जो कंटेंट दिख रहा है वो 1000 लोगों को दिख रहा है मैक्सिमम। इससे राइट। ज्यादा का कंटेंट आपको दिखेगा नहीं, मतलब ऑन ठीक एन है नहीं। एवरेज डे। तो सही बात। आप उसके बेसिस पे आप वो कर रहे हो कि यार, व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट, एंड व्हाट पीपल, हम जो जिस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं ना, कि अगर आप किसी चीज की बात करो तो आपको उसके जैसे रील्स आने लग जाती हैं, एड्स आने लग जाते हैं वगैरह वगैरह। So that is very true for anything. Like it's not just your conversations. If you go to Kota and you attend a class, let's say you watch addicted to pornography, right, on your own, but you start attending classes in Kota जहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड है, राइट। तो अब आपका फोन है आपकी जेब में या कहीं टेबल पे रखा हुआ है, और उस फोन पे क्या फीड हो रहा है, फिजिक्स की बातें जा रही हैं, केमिस्ट्री की बातें जा रही हैं, मैथ्स की बातें जा, तो अब आपका कंटेंट एल्गोरिदम शिफ्ट होगा, करेक्ट आपका कंटेंट शिफ्ट होगा कि भाई क्या कहते हैं उसको, अब वो आपको फिजिक्स वाला की वीडियो दिखने लग जाएंगी, आपको करेक्ट ऐसे एजुकेशनल वीडियोस भी दिखने लग जाएंगी, फनी वाली करेक्ट। दिखने लग जाएंगी चाहे। और उस समय ये ट्रू भी है, देखो आज की डेट में ना, मतलब आप देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग उठा लो, नॉट ओनली दोज एंटरप्रेन्योर हु बिल्ट अ $1 billion कंपनी, बट भी हाँ। नॉर्मल बंदा भी उठाओ जो अपने सिटी के अंदर एक्सेल कर रहा है किसी भी कैटेगरी में, बी टीचिंग, एजुकेशन और इट्स एनी काइंड ऑफ बिजनेस। आप देखना, जो बंदा अचीव करने की कोशिश कर रहा है ना, उसका सर्कल उतना बहुत बड़ा होगा। मतलब या किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आ रहा हो, अगर उसका सर्कल बड़ा नहीं है ना, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि वो बंदे को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है अपनी लाइफ में एक्सेल कर। सर्कल बड़ा करने की आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? सर्कल बड़ा करने की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने सर्कल को 11th क्लास से बड़ा करना शुरू करो। मतलब 11th इन द सेंस, आप 11 12 या 12 के बाद 13 में आप कोटा चले जाओ या किसी भी शहर में चले जाओ जहां पर और शहरों से बच्चे आते हैं। आपके पास एक ब्रॉडर मिलेगा कि यार ये 10 लोग हैं, आप 100 लोगों से कनेक्ट हो गए। एंड स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 11 12 में जिन लोगों से कोटा में मिला था वो आज भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब काफी अच्छे फ्रेंड है। एंड तो आप वहां से सीखते हो यार, मतलब कि यार ये साइकिल है, ये साइकिल है। दूसरा आपके सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छा एक्सेल कर लो, आप कॉलेज चले जाओ, है ना। कॉलेज नहीं जा पा, अब दोनों ही चीजें पॉसिबल है कि लेट्स से इफ देयर इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग विद इट। अगेन आप कोशिश करो कि यार की कहते हैं, अगर आपके पास कॉलेज में अपॉर्चुनिटी है, आप या तो प्रोबेबली बीटेक और कुछ कर रहे हो या फिर कुछ और भी कोर्सेज कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन, कि यार 2 महीने के लिए किसी भी काइंड ऑफ रोल में जाके देखो। इट्स ओके कि आप यू विल हैव टू फाइट फॉर अ ब्रेड एंड बटर, इट्स ओके, डेफिनेटली ओके। बट आपको जब 100 लोग मिलेंगे ना यार, देयर विल बी एन, मैं ये नहीं कह रहा 100% सक्सेसफुल होगे, बट देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कि शायद मेरा बहुत अच्छा सर्कल बन जाएगा इसमें से। फिर अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, मतलब उस समय मैं आज भी ये इंश्योर करता हूँ, मतलब मैं आज भी जब भी कोई मीटिंग लेता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई बंदा मेरे को ये नहीं बोले बिकॉज कि यार प्रियांशु तो देखो को फाउंडर है, इसलिए जो प्रियांशु बोल रहा है वो सब कुछ सही है। मैं उस मीटिंग से पहले एक दिन पहले प्रिपरेशन करता हूँ कि लोगों को लगे कि ये इस रूम में अगर ये बैठा हुआ है तो इसको इसके बारे में पता है, मतलब ही इज ट्रू। एडिंग वैल्यूज टू द मीटिंग, नॉट बिकॉज कि यार क्योंकि को फाउंडर तो प्रियांशु सही होगा, कुर्सी की मतलब वजह से नहीं बैठा हुआ। हाँ, मतलब वो तो 100% गलत है। इवन मैं जब उसमें हाँ। भी था, इन माय लास्ट यू नो क्या कहते हैं कंपनी एज वेल, मेरा बहुत इंश्योर था कि हम जब भी टीम मीटिंग लेते थे नेक्स्ट दिन, कई बार होता था कि देखो ऐसा होता है कि हमने एक हफ्ते काम नहीं किया, ऐसे लाइट हम्म। लाइट चल रहा है, अगले हफ्ते अपने को टीम के साथ मीटिंग लेनी है। आई ऑलवेज इंश्योर कि एक रात पहले मैं हम्म। पूरा ग्रेस्प करने की कोशिश करूं, जैसे अगले दिन अगर मैं मीटिंग में बैठ रहा हूं तो लोग बोले हम्म। नॉट बिकॉज ही इज माई मैनेजर दैट्स व्हाई ही इज लीडिंग द मीटिंग, यार उनको नॉलेज है कुछ तो, वो वैल्यू एड कर रहे होंगे, तो कुछ तो समझ लेते हैं उनसे। और मुझे भी वाइसी वर्सा उनसे भी काफी लर्निंग मिल जाती थी। तो मतलब यू हैव टू अगेन, आपको सर्कल बड़ा करना पड़ेगा यार, मतलब
नहीं हो पाएगा बड़ा। बहुत मतलब बहुत मतलब एक्चुअली बहुत अच्छी बात बोली आपने। मतलब फ्रॉम व्हाट आई नोटिस, अक्लमंद लोग जो होते हैं ना वो अलग से दिखते हैं। एंड अक्लमंद लोग, उन अक्लमंद मेरे सेंस में इसलिए होते हैं कि या उनको बहुत कुछ पता होता है, कि मतलब आप उनसे कुछ भी बात कर लो, आप उनसे बकवास बात भी कर लो, मतलब मजे की बात भी कर लो, उनको वो भी पता होगा। बट करेक्ट। आप उनसे बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर लो, उनको वो भी पता होगा। तो उनका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है ऑफ राइट। नोइंग थिंग्स। एंड आई राइट। थिंक लाइक यू सेड दैट कांट हैपन विदाउट नोइंग अ लॉट ऑफ पीपल। करेक्ट। वेरी ट्रू। अगर अगर आपके मतलब फर्स्ट डिग्री नेटवर्क में एक फनी बंदा नहीं है, तो आपको फनी चीजों के बारे में शायद ना हाँ पता हाँ, हो। नहीं पता होगा, अगर आप आप नहीं जानोगे मेम क्या होता है, गोट क्या होता है। एग्जैक्टली वही तो, आपकी लाइफ में कोई मतलब कोई बहुत अच्छा एकेडमिक बंदा नहीं है, तो आपको, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे जो कुछ एक बेस्ट फ्रेंड है वो इकोनॉम मतलब उसने काफी अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मतलब वो रिसर्च एसोसिएट है। वो आई थिंक एनएसयू कहते हैं उसको, नेशनल सिंगापुर यूनिवर्सिटी, एनयूएस, सॉरी नॉट एनएसयू। तो वहां पे वो रिसर्च एसोसिएट है। तो उससे मेरी जब बात होती है तो ही कीप्स टेलिंग मी अबाउट व्हाट ही डज, नॉन लाइक कॉन्फिडेंशियल थिंग्स बट जनरल थिंग्स दैट ही डज। तो उसमें वो बताते, तो उससे मेरी इतनी नॉलेज एनरिच होती है अबाउट जस्ट द वर्ल्ड, की क्या क्या चल रहा है दुनिया में, सस्टेनेबिलिटी की क्या क्या चीजें चल रही है, एंड मतलब वेयर इज द वर्ल्ड मूविंग, हाउ डज द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इम्पैक्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, एंड मतलब सोशियो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग। मैं कॉलेज तो गया नहीं, तो मतलब ऑल ऑफ माई लर्निंग्स कम फ्रॉम माई पीपल, एंड आई थिंक दैट्स अ सेम विथ मी। ब्यूटिफुल थिंग। सेम विथ मी, सेम विथ मी। मतलब आप सोचो ना, जब हम ना आइडियाज फिगर आउट कर रहे थे, हमने ना फार्मा के ऊपर भी कुछ आइडिया सोचा था। मैंने कि फार्मा तो मेरे को पता होगा, क्योंकि मैंने दवाई बेची एक बार, है ना। ऑनेस्टली मैंने बहुत रिलेट किया, मैंने कि ठीक है, हाँ कुछ तो पता ही होगा, है ना। एंड सेम हमने हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट किया, तो हमने हमें मेरे को रियल एस्टेट समझ में आ गया कि यार ये तो कर ही लेंगे मतलब। तो कहीं ना कहीं यार, मतलब अगर आपका ब्रॉडर नेटवर्क है ना, और आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी ठीक है, ट्रस्ट मी यार, लाइफ में किसी तो कैटेगरी में आप एक्सेल कर जाओगे, इररिस्पेक्टिव आप जॉब हो, बिजनेस कर रहे हो, हाँ या किसी काइंड ऑफ क्रिएटर हो, 100% एक्सेल करोगे यार, मतलब एग्जैक्टली मेरे को पता ही exactly. नहीं। वो काफी सच बात है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एंड बिकॉज आप पांच लोगों को, अच्छे लोगों को जानते हो, दे विल ऑलवेज स्टेप आउट। अच्छे लोग ऑलवेज हेल्प इसमें एक अदर और पीपल। चीज है उसामा, जो मेरा लगता है ना, कि नेटवर्क आपने बोल दिया जी, मैं तो 5 बड़े लोगों को जानता हूँ, है ना। हाँ वो बट आपको जानते हैं क्या? नहीं नहीं, वो भी सेकेंडरी। मेरा मानना है कि हाँ, यार वो इंसान भी आपको तभी वैल्यू देगा ना, जब उसके लिए आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। इंडिया एज अ वही। कंट्री आज की डेट में हमारे यहाँ डाइवोर्स के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, हाँ राइट। बहुत सिंपल है, जो एक रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें इक्वली इन्वॉल्व नहीं हो, तो वो रिलेशनशिप काम नहीं करने वाली। आज ट्रू। नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 4 साल बाद, उसमें कहीं तो फुल स्टॉपेज आ ही जाएगा। तो यू हैव टू हाँ। इंश्योर कि लेट्स से आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो, आपने बोला जी, लेट्स से ये बंदा डायमंड इंडस्ट्री का है, राइट। हम्म। तो आप बेसिक नॉलेज रेडी रखो हम्म। अपने पास यार। उसने कुछ ऐसे टर्म्स बोल दिए, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यार, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हम जब फार्मा पे आइडिया फिगर आउट कर रहे थे, किसी ने हमको बोला जी एपीआई ये जर्मनी से इंपोर्ट होके आती है। अब मैं उससे पूछूंगा जी एपीआई क्या होती है ना, तो वो अगली कॉन्वर्सेशन में मुझे एंटरटेन ही नहीं करेगा, है ना। तो राइट। कि हमें पहले से पता होना चाहिए बेसिक बेसिक टर्म्स। तो आप जब राइट। भी एक ऐसे इकोसिस्टम, क्योंकि देखिए आपके कोई स्कूल कॉलेज के तो फ्रेंड है नहीं, और टाइम हाँ इज मनी, है ना। मतलब मैं किसी को टाइम दे रहा हूँ या कोई मुझे टाइम दे रहा है, तो आई एक्सपेक्ट कुछ तो फ्रूटफुल रहेगा, इधर इट इन द राइट। फॉर्म ऑफ फन मैनर, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, राइट। तो आप राइट। थोड़ा बेसिक स्टडी करके रखो कि जी ये इंडस्ट्री है, तो आई कैन टॉक अबाउट इट। मतलब मेरे दो फ्रेंड्स हैं, काफी क्लोज हैं, मतलब एक का नाम है राहुल एंड लेविन, बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स। हम अगेन वी मेट इन कोटा। अब हमारी काफी इंटरेक्शन होते, तो मैंने मेडिकल इंडस्ट्री को काफी क्लोजली समझा। तो हम घंटों बातें कर सकते हैं यार, कि यार देखो, इसमें ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उनके भी इंसाइट्स आते हैं। सो यू हैव टू कीप एडिंग वैल्यूज टू द रिलेशनशिप। नहीं करोगे तो पीपल विल नॉट गिव यू टाइम एंड वैल्यू, दैट इज राइट। 100% श्योर। मतलब ये मैंने राइट। पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि आई कंप्लीटली एग्री। मैंने भी किया, मतलब आई थिंक इट्स अ हाँ, मतलब ब्यूटीफुल थिंग। पहले इनिशियली मेरा होता था कि किसी को भी मैसेज कर दो, मिल लो, अब ये टॉपिक क्या है बात करने का बताओ, अगर किसी ने टाइम दे हाँ दी। बेटर है कि हाँ। आप उससे पहले सीख के जाओ थोड़ा सा, फिर आप उससे बात करोगे, तो हिल गिव यू इनसाइट्स एंड बात ऑल। करने की भी अच्छी चीज होती है ना फिर। बात करने में भी अच्छी चीज होती है ना। और देखो आप ना, एक चीज होती है, देखो, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, दो भाई का एग्जांपल ले लो, दो किसी का भी ले लो। लेट्स से एक बंदा बहुत बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है ना, एक बंदा बहुत हम्म। एक्सट्रोवर्ट है। तो जी बहुत प्यार है दोनों के में, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट एक हम्म। टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, जो बहुत बहुत सोशल हो रहा होगा बंदा, उसका पूरा सर्कल बहुत अलग हो जाएगा। अब जो इंट्रोवर्ट था वो सिर्फ राइट। बंदे पे डिपेंडेंट था, तो उसको लगेगा कि यार ये मेरे को टाइम नहीं देता। तो गलती उसकी नहीं होती है, मतलब you'll have to keep your circle in an active manner, कि यार आप ज्यादा लर्निंग या कैपेबिलिटी रहे हैं आपके लिए।
दिस Exactly. It will not इज, grow passively. It's an active effort thing. हाँ इट इज But एन, coming back to the topic, अभी मैंने मोटे पीटे की बात नहीं करता हूँ मैं. तो हाँ मैं मतलब we touched upon Pristine Care last, and I think अब मोटे पीटे की जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से. So हाँ how did you like, क्योंकि आप कार देखो से निकल चुके हो. रजत was in कार देखो your manager from what I understand. तो हाँ। how do you come back with Rajat to form Motorpedia? तो यार ऐसा था, तो आई आई वाज रिपोर्टिंग टू रजत, रजत वाज द हेडिंग द रिटेल बिजनेस फॉर कार देख। एंड पोज हम लोग प्रेस्टीज में भी काफी कनेक्टेड थे, मैं और रजत ना, मतलब हम वंस Okay. इन अ वीक और 2 टाइम्स इन अ वीक हम मिलते थे। और Okay. ऐसे तो हमारी प्लानिंग में नहीं, रैंडम आइडियाज पे भी हमने काफी डिस्कशन किया है। वी वेंट टू चांदनी चौक टू एक्सप्लोर ज्वेलरी मार्केट, एंड वी हम्म. वेंट आई वेंट टू फिरोजाबाद टू, हमने इवन कैटल बिजनेस पे भी सोचा है कि अगर हम कैटल ट्रेडिंग पे भी कुछ बना सकें तो कैसे बन सकता है। हम्म. हमने बहुत चीजें डिस्कस करी हैं, मतलब साथ में बहुत चीजें डिस्कस करी हैं। तो बेसिकली दैट आइडिया वाज नॉट माइन, है ना, इट वाज रजत एंड विभोर आइडियाज ऑल टुगेदर। एंड हमने पूरा आइडिया समझा था, हमें बहुत क्लियर था कि यार क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव स्पेस का, हमें हम्म. प्रॉब्लम भी पता है, तो लेट फिगर आउट कि हम कैसे हम यूज का डीलर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड वी वर वेरी क्लियर कि हम जो बिजनेस बनाएंगे वो B2B बनाएंगे। तो हमने फिर मोटरपीडिया फॉर्म करी इन द सेंस, एंड हमने बिजनेस मॉडल्स पे फिगर आउट किया कि हम, अब देखो एक गाड़ी की जर्नी समझोगे अगर आप, तो एक गाड़ी होती है, आप पहले इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हो, फिर एक गाड़ी Right. खरीद, 3 साल बाद आप उस गाड़ी को बेचते हो। अब बेचने के आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे बेच दो सच एज कार 24 ऑब्लिक स्पिनिंग, या फिर आप जी डायरेक्ट डीलर को बेच दो, या किसी अपने फ्रेंड को Right. बेच। तीनों ही केसेस में गाड़ी डीलर को जा रही होगी। एक यूज कार डीलर हम्म. को, वो क्या करेगा, वो आपकी गाड़ी खरीदेगा, पहले आपकी गाड़ी को चेक करेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विच इज कॉल्ड प्री प्रिक्योरमेंट चेक, सच एज वाहन चेक, सर्विस हिस्ट्री, चलान चेक। हम्म. तो यहाँ पर हमने सोचा कि एक वैल्यू प्रॉप है, हम डीलर को एक वो देते हैं, वैल्यू सर्विस देते हैं कि जी आपका पूरा प्री प्रिक्योरमेंट चेक हम इंश्योर करेंगे। आप हमारे Okay. प्लेटफॉर्म पर, तो हमारी एप्लीकेशन है मोटरपीडिया करके, जहां पर डीलर पूरा प्री प्रिक्योरमेंट चेक कर सकते हैं, सच एज चलान चेक, वाहन चेक एंड सर्विस हिस्ट्री चेक एंड सो ऑन। हम्म. के बाद क्या होता है, गाड़ी पर रिफर्ब होता है, डीलर उस गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करता है, अगर पेंट की नीड होती है तो पेंट कराता है। एंड अभी हम रिफर्ब में नहीं है, बट वी आर हम्म. एक्सप्लोरिंग दिस वर्टिकल एज वेल कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी मैन पावर डिपेंडेंट है, यू हैव टू इंश्योर दी ट्रस्ट इन एवरीथिंग। तो अभी के लिए हम Right. रिफर्ब में नहीं है। उसके बाद क्या होता है जी, गाड़ी की पे वो एक इंश्योर करता है कि जो मैं गाड़ी पे मार्केटिंग करूं, मैं कैसे भी करके गाड़ी को बेचने की कोशिश करता है, अपने स्टोर में रखता है। तो हेयर वी कम इन दी पिक्चर, हम डीलर से बोलते हैं हम्म. जी आपके पास 10 गाड़ियों का स्टॉक है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, आपके बिहाफ पर उन गाड़ियों पर मार्केटिंग मैं रन करूंगा, मैं कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, और मैं आपके स्टोर पर वॉक इन कराऊंगा। जब हम्म. कन्वर्जन हो जाएगा वी विल हैव अ इकोनॉमिक्स कन्वर्सेशन एंड ऑल। तो जी हमने प्री प्रिक्योरमेंट चेक में हेल्प कर दी, रिफर्ब अभी के लिए थोड़ा सा ग्रे स्पेस है, बट हम इस पे बहुत जल्दी कुछ लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद हम बोलते हैं जी अब आपको गाड़ी बेचनी है, जी मैं आपकी बेचने में भी हेल्प कर रहा हूँ। तो हम Okay. वो गाड़ी आपकी डीलर टू डीलर, मतलब एक डीलर से दूसरे डीलर को भी गाड़ी बेचते हैं, और एक डीलर से दूसरे कस्टमर को भी गाड़ी बेचते हैं, है Okay. ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसामा, लेट से आप कस्टमर को, आप जैसे कस्टमर से गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप 100 गाड़ियों का इंस्पेक्शन करोगे तो 20 ही कस्टमर आपके साथ कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन Right. डीलर डीलर ट्रेड में क्या होता है कि डीलर को तो गाड़ी बेचनी है, और जिस डीलर को गाड़ी खरीदनी है उसको खरीदनी है, तो यहाँ पर हम्म. कन्वर्ट काफी आपका ज्यादा हो जाता है। हम्म. लेट से कस्टमर को वो गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसके बाद हमारा अगेन हमने वो गाड़ी ट्रांजेक्शन करवाया, उसके बाद हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन आता है जी, अब गाड़ी पर इंश्योरेंस होना होगा, राइट। हाँ. तो हम इंश्योरेंस में डीलर की हेल्प करते हैं, एंड वी गिव अ वेरी हम्म. गुड टू आवर ऑटोमोटिव डीलर एज वेल। उसके बाद कस्टमर को गाड़ी खरीदनी है, कस्टमर को लोन चाहिए, Right. राइट। On second hand. ऑन सेकेंड हैंड कार, ठीक है, उसमें भी हम एज अ वैल्यू प्रपोजिशन हम कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हम कस्टमर का लोन फैसिलिटेट कराते हैं जिससे डीलर की गाड़ी बिक जाए। कस्टमर का हम्म. लोन हो जाता है, तो इसमें जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बैंकों की भी। यूज्ड कार में ना एसेट तो आपके पास गाड़ी है, अगर आरसी पर लोन नहीं चढ़ेगा तो बैंक के लिए तो वो एसेट ही नहीं बना ना। तो वी कम इन हम्म. दी पिक्चर ऑफ द आरटीओ एज वेल कि गाड़ी बिक गई है, लोन भी हो गया है, अब गाड़ी की आरसी ट्रांसफर होनी है। तो हेयर हम्म. वी इन दी पिक्चर, हम उसका आरसी ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करते हैं, और जो आरसी के ऊपर एचपी चढ़नी होती है वो हम चढ़वाते हैं। तो इस तरीके से हम Okay. प्री प्रिक्योरमेंट चेक, देन हेल्पिंग इन दी सेल्स, देन दी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसके बाद हम डीलर को प्रिक्योरमेंट में भी हेल्प करते हैं, प्रिक्योरमेंट इन द सेंस कि आपको जी गाड़ी खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको आई 20 खरीदनी है, आपके पास आई 20 का कोई हम्म. कस्टमर है, बट अभी आपको आई 20 ऑन द स्पॉट नहीं मिल रही, बट जी आपसे कोई 50 किलोमीटर दूर डीलर बैठा हुआ है, उसके पास 10 आई 20 खड़ी हुई है। Okay.
तो जी मैं फैसिलिटेट करा दूंगा उस ट्रांजेक्शन को, आप i20 खरीद सकते हैं उसे। और ये बिजनेस वो है ना, इट्स अ रोटेशन बिजनेस। आपने 10 हम्म। गाड़ी रखी हुई है और इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, मतलब हम्म। एप्रिशिएटिंग। आपको समझना पड़ेगा कि हर महीने आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो तो आप बेचना चाहोगे जरूरी है। जितना जल्दी निकल जाए उतना जल्दी मैं निकालता हूँ इस गाड़ी को। राइट, तो उसमें हम्म। वैल्यू प्रोपोजिशन आता है कि ठीक है, हियर हियर मोटरपीडिया विल कम एंड ही विल हेल्प अस इन दी ट्रांजैक्शंस एंड एज वेल। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल फॉर द मोटरपीडिया। गॉट इट। सो अभी आप कितनी कार्स मतलब एनुअली या मंथली आप डील कर मतलब वो फैसिलिटेट कर पा रहे कुछ 74 ट्रांजेक्शंस करे थे हमने लास्ट मंथ, एंड दिस मंथ वी आर ऑल सेट टू टच द नंबर ऑफ 100। हैं? ओके, सो मतलब ईयरली आप नेक्स्ट ईयर आई एम श्योर यू टारगेटिंग 1000+ कार्स नेक्स्ट फिस्कल ईयर। Probably not 1,000 plus. We will be targeting कुछ 300 plus car month on month basis in couple of month only. ओके, तो ओके, तो बेसिकली 3 to 4 thousand कार्स पर ईयर इन द Yeah, नेक्स्ट फिस्कल ईयर। next best year. Correct. ओके, तो इसमें आपका कितना परसेंटेज, मतलब इफ यू ओपन टू शेयरिंग दैट, मतलब यूजुअली कितना होता है, मतलब इस क्योंकि जैसे हमारे कोवर्किंग स्पेस में मैं एग्रीगेटर के लिए काम करता हूँ, माई एचक्यूटी। तो मतलब इट्स व्हेन दे वर अर्ली, लाइक स्टार्टिंग वेरी अर्ली इन आपको दिस देखो स्टेज। मार्जिन्स, अगर मैं एक सब्जेक्टिविटी रखता हूँ तो यार देखो जी, हम बहुत कम मार्जिन लेते हैं। मतलब आप समझो कि कुछ क्लोज, बिकॉज अभी हम पूरा ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट कर रहे हैं, राइट। तो हम हम्म। कुछ क्लोज टू $100 टाइप आप ये मान के चलो। मतलब अगर मैं आपको फिगर दूं, हमारी गाड़ी, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट किसी भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी लिस्टेड है उससे सस्ती होगी। चाहे आप वो गाड़ी हम्म। कस्टमर को जा रही हो, चाहे वो गाड़ी डीलर को जा रही हो, हमारी हम्म। गाड़ी उनसे काफी सस्ती होगी कंपैरेटिवली। कुछ हम्म। 3-4% का आपको डिफरेंस दिखेगा गाड़ी के ऊपर। एंड हम्म। आप तो चलिए गाड़ी में मार्जिन भी क्लोज टू उतना ही होता है, तो वी इंश्योर कि हम कुछ अभी टेंटेटिव $100 टाइप इंश्योर कर पाते हैं। ओके, उसके अलावा मतलब सो I'm assuming that it's not a cash flow positive business right now for the company. मतलब it's not profitable right now, so you might have raised वी some आर अ वेरी funds. यंग कंपनी। मतलब ऑन Exactly. So, ट्रांजेक्शन लेवल वी आर प्रॉफिटेबल, यस। हम कोई भी ट्रांजेक्शन लॉस मेकिंग नहीं करते हैं। बट right. इन रिलेशन टू दैट द कैश फ्लो बिजनेस पॉजिटिव, फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव इट इज नॉट एन अभी कैश पॉजिटिव बिजनेस, सो। Because it's a startup, right? You've raised some funds. So करेक्ट करेक्ट। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि how much funds did you raise? What was your mindset while raising funds? क्या आपका प्लान क्या वी था? आर वेरी क्लियर कि हम डीलर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड डीलर के लिए हम डीलर का, बस डीलर का काम क्या है? डीलर का काम है जो उसके स्टोर पर कस्टमर आ रहा है उससे बात करके गाड़ी बेचना, बाकी सारी चीजें हम डीलर के लिए करने होंगे। फॉर हम्म। दैट वी हैव रेज्ड क्लोज टू $1 million फ्रॉम वीवाई कैपिटल एंड मार्क इन्वेस्टर्स। ओके, बट आपके मेट्रिक्स क्या थे? लाइक आई एम प्रीटी श्योर यू माइट हैव गिवन सम मेट्रिक्स, मतलब जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फाउंड वो माइंडसेट ऑफ अ फाउंडर के लेट्स से कि व्हाट वाज योर गोल, लाइक कितने टाइम के लिए आपने फंड उठाया था एंड उस टाइम में आपको क्या नंबर अचीव करना था? जैसे डू यू वांट टू इम्पैक्ट लाइक 1000 डीलर्स, कैसा कुछ मैं नंबर आपको एक था? नंबर देता हूँ जो हमने उस टाइम इनिशियली कमिट किया था इन रिलेशन टू। यार हमने सबसे पहले जो अपनी सर्विसेज स्टार्ट करी थी वो हमने आरटीओ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड देन वी केम ऑन टू कि हम डिजिटल इकोसिस्टम बेचेंगे जहां हम डीलर के लिए हम्म। एक डिजिटल वेबसाइट और डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करेंगे एंड ऑल। हम्म। है ना। हम राइट नाउ हमारी देर आर 2500 डीलर इन दी एनसीआर, और हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 1500 डीलर्स के पास है आज की डेट में। ओके, तो इन रिलेशन टू गॉट दैट इट। अगेन, एवरीवन इज नॉट ट्रांजेक्टिंग डीलर विद अस, बट कुछ 1500 डीलर हम्म। हमारे पोर्टफोलियो पर एक्टिव है, और कुछ हम लोग लगभग 700-800 डीलर के साथ में एक्टिवली किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन में काम कर रहे हैं। एंड राइट, दैट राइट। विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो like the number that you were trying to hit was 2500. इट इज द टोटल नंबर ऑफ डीलर इन द एनसीआर ओनली। तो अभी हमने सिर्फ एनसीआर ही टारगेट किया हुआ है, अभी हमने कोई भी स्टेट अदर लॉन्च नहीं किया। वी आर वर्किंग ऑन द राजस्थान, और हम फिगर आउट करें राजस्थान एंड गुजरात को कितना जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी Okay. बेसिकली हम सिर्फ एनसीआर में एग्जिस्ट करते हैं। Okay. And what is the plan? Like you said, you're trying to reach the number of 300 cars per month in the next fiscal year, in within a couple of months, inshallah. So, what is the plan? Like larger plan for the company? Cars to जाएंगी. How many dealers are you thinking? And how soon? Like, where do you want to take Motorpedia? Like, where do you see it going eventually? यार तो आप जैसे सिंपल, आपने इस मतलब पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बोला था कि 1 करोड़ में मैं 1000 करोड़ की कंपनी बना दूंगा, तो वो आप बोले क्या हाँ सोच के यार बोल मतलब रहे वो हो? तो देखो, जब अपना फंडिंग वंडिंग रेज नहीं करी थी तो मन में एक ही चीज क्लियर थी कि जब हमको 1 करोड़ रुपए दे दीजिए एंड हम उसमें कुछ 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। मतलब उस टाइम आपको नहीं क्लियर होता यार कैसे चीजें होंगी। बट वेन यू कम इन द रियल गेम तो आपको समझ में आता है कि यार थिंग्स इतना इज इजी टू स्पीक, इजी टू एग्जीक्यूट ऑन एक्सेल, बट हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन द रियल लाइफ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हम 3,000 या बाकी के नंबर पे कैसे पहुंचेंगे।
तो यार बहुत सिंपल सा आंसर है। पहले जो मेरे 700 डीलर हैं राइट, जिनके साथ मैं हम्म। एक्टिवली वर्किंग कर रहा हूँ, पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भी बैकएंड पे ऑपरेशन चैलेंजेस है, वी आर आल्सो वर्किंग ऑन इट कि हम उसको और कैसे स्मूथ कर सकते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो कोर टारगेट है कि हम हर डीलर को एक डिजिटल स्पेस में लेके आए, जिससे उसकी डिजिटल विजिबिलिटी इंप्रोवाइज हो, कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर सके एंड सो ऑन। इट्स सिंपल यार, आप डीलर की लिक्विडेशन साइकिल में हेल्प कर दो, कस्टमर की हेल्प कर दो। एक कस्टमर समझो आप, लेट्स से उस समय, लेट्स से ट्राइंग टू बाइंग कार, है ना, और उस समय के पास क्या ऑप्शन है, ही गो टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड द सेकंड ही गो टू यूज कार डीलर। तो यूज कार डीलर राइट। में लगता है कि जी यार ये तो गाड़ी में को चिपका देगा डीलर, हर हर हम्म। बंदे के ब्रेन में आता है। मैं आपको अगर लेट्स से अपना फोन बेच रहा हूँ ना, तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो फोन में गड़बड़ है, तभी ये इंसान मेरे हम्म। को दे। इट्स अ ह्यूमन माइंडसेट राइट। राइट। हम इसमें क्या बोलते हैं जी, हमारे थ्रू ली गई गाड़ी ना वारंटी सर्टिफाइड है, हमारे थ्रू ली गई गाड़ी ये इंस्पेक्टेड व्हीकल है। तो आप हमारे पार्टनर किसी भी डीलर के पास जा रहे हो, तो वहां पर जो गाड़ी खड़ी हुई है वो मोटरपीडिया के थ्रू सर्टिफाइड है इन रिलेशन टू वारंटी, इन रिलेशन टू इंस्पेक्शन एंड सो ऑन। वारंटी हम्म। का मतलब होता है कि हम 3 महीने 6 महीने 9 महीने डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ व्हीकल, हम उस पर एक वारंटी इशू करते हैं, राइट। इंजन, गियर बॉक्स एंड सो ऑन, सब मैकेनिकल पार्ट्स। तो वहां से कस्टमर ट्रैक्शन, अभी अपन जो पूरा फोकस हमारा वो यही है कि हम कस्टमर के साथ वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके, क्योंकि द जर्नी, उस समय ऐसा नहीं होता कि आप स्टार्टअप में से हर महीने एक नंबर अचीव करते हो। डेफिनेटली या इट्स योर मैट्रिक्स, बट इंपॉर्टेंट होता है इसको आप कितने सस्टेनेबल तरीके से या अप्रोच कर रहे हो। अभी हमने जो डीलर के साथ अपना नेटवर्क बनाया है, नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कि यार हमारा जो कस्टमर के साथ ट्रैक्शन है, कि कस्टमर को किसी भी डीलर के यहाँ मोटरपीडिया की ब्रांडिंग दिख रही है, तो उसको ये भरोसा हो जाएगी कि गाड़ी तो उनके पास सर्टिफाइड ही खड़ी होंगी, है ना। हम्म। हर गाड़ी पर एक मोटरपीडिया का टैग है कि यार ये मोटरपीडिया से इंस्पेक्टेड व्हीकल है, तो ये सर्टिफाइड व्हीकल है। एक माइंड में वो क्लैरिटी, तो हम काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारा कस्टमर के साथ ट्रस्ट डेवलप कर सकें। ये डेवलप हो जाएगा, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू रीच द नंबर ऑफ 3000, वॉट एवर नंबर वी आर ट्राइंग टू टारगेट, 300 राइट। 400 ऑन अ मंथली बेसिस। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि हम कस्टमर के साथ वो रिटेंशन, वो ट्रस्ट एक बिल्ड कर सके। दूसरा, सेम अपॉर्चुनिटी में हम डीलर इकोसिस्टम को भी पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं, कि यार डीलर की हर हर सर्विस डिजिटलाइज हो सके, मतलब डीलर को इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़े। उसने बोल दिया जी मोटरपीडिया मेरा पार्टनर है, ना मुझे अब ऑनलाइन मार्केटिंग की नीड है बिकॉज दे आर डूइंग इट, ना मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग की नीड है, दे आर डूइंग इट। वो मेरे स्टोर पे कस्टमर लेके आ रहे हैं, उन्होंने मेरे व्हीकल को सर्टिफाई कर दिया। जी मुझे इंश्योरेंस कराना है तो मैंने मोटरपीडिया से करा दिया, मुझे बहुत अच्छा पे आउट मिल गया। मुझे लोन कराना है, मैंने मोटरपीडिया से करवा दिया, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा पे आउट मिल गया। मेरे लिए आई एम फ्री टू डू वट एवर आई कैन डू। तो अभी या हम उस माइंडसेट पे काम कर रहे हैं बिफोर रीचिंग द 300 नंबर्स, क्योंकि वो राइट। सस्ते कर रहे हैं नंबर। राइट। गॉट इट, गॉट इट। बट सो बेसिकली ये सारी चीजें जो सर्विसेज आपने बोली कि हम ये सब कर देंगे डीलर्स के लिए, तो ये सारी सर्विसेज अभी कोई और नहीं प्रोवाइड कर रहा मार्केट में? यार सो ये सर्विसेज का बताता हूँ, पूरा कंसोलिडेटेड कोई वन प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर वही रहा पूछ है। रहा हूँ कि वही एक कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक हाँ, जगह पे कंसोलिडेशन में प्रोवाइड कर रहा आपको ऐसे अब इंटरनेट पे डालोगे हम जी मुझे चालान चेक करने, तो बहुत सर्विस मिल जाएंगी। बट हमारे यहाँ क्या है कि आपने मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, बैकएंड पर आपका एक्टिवेशन हो गया, अब उसके बाद क्या आपको चालान चेक करना है, चालान चेक कर लिया, वाहन चेक करना है, वाहन चेक कर लिया, सर्विस हिस्ट्री की रिक्वेस्ट करनी है, आपने सर्विस हिस्ट्री की रिक्वेस्ट कर दी। अब है? चालान, गॉट इट। क्योंकि अगर डीलर किसी गाड़ी बेच रहा है तो कस्टमर को चालान वाली गाड़ी तो नहीं बेचेगा, चालान पे ऑफ भी हम्म। करने पड़े, जो उसे चालान पे ऑफ करने की हम्म। रिक्वेस्ट करते हैं हम उसमें हेल्प कर देते हैं। उसको उसको लगता है कि उसे अपनी, सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि लेट से उसके पास 50 गाड़ी हैं, गाड़ियों का हम्म। बिजनेस होता है कि जी हर महीने आपकी इन्वेंट्री बदलती रहेगी। तो आप चाहोगे कि एक मेरे पास सेंटर प्लेटफॉर्म हो जहां पर मैं पूरी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकूं, पूरी लीड को मैनेज कर सकूं। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, लीड मैनेजमेंट भी। जी आपने उसमें गाड़ी डाल दी, आप गाड़ी कुछ वो क्या कहते हैं, आप डाल दो कि स्टॉक इन हुई है, स्टॉक आउट हो गई एंड सो ऑन, तो पूरी आप इन्वेंट्री कंसोलिडेशन में मैनेज कर सकते हो। देयर गॉट विल इट। बी रिकॉर्ड कि ये गाड़ी आपने किस कस्टमर को बेची थी, पेपर्स में कैसे गॉट इट, ढूंढो। गॉट इट। इफ कोई लीगल एस्पेक्ट आता है तो उस वे में भी आप अपनी गाड़ी को जस्टिफाई कर सकते हो। सेम फ्रॉम दी लीड मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल। लीड मैनेजमेंट में क्या है कि जी आपकी 4 प्लेटफॉर्म से लीड आ रही है, आपको नहीं पता, अब होता है ना, समझो लेट्स से देयर प्लेटफॉर्म ए बी सी डी, कस्टमर तो ए पे भी जा सकता है, बी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है, और हाँ। चारों पे जा सकता है। तो आप क्या 4 बंदों को अलग अलग लीड नहीं बांटोगे ना, तो आपके लीड मैनेजमेंट में क्लियर हो जाएगा कि ये लीड मल्टीपल टाइम आई है, तो उसको एक ही बंदे से कॉल कराना है। आप सोचो हम्म। ओसामा को एक ही कंपनी से राहुल ने भी कॉल किया, श्रेया ने भी कॉल किया, अरुणा ने भी कॉल हाँ। की, प्रिया ने भी कॉल किया, तो आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि यार मैं तो या इस trip पे नहीं जाऊंगा। तो हेयर द पिक्चर कम्स दी लीड मैनेजमेंट एज वेल, तो वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू इंश्योर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम देन देयर इज अ डिजिटल इकोस्पेस एंड एवरीथिंग। तो कंसोलिडेशन में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको सेग्रीगेटेड डेफिनेटली चलान चेक वाहन चेक पे कुछ प्लेटफॉर्म मिलेंगे, कुछ सर्विस हिस्ट्री पे भी मिलेंगे, बट ये कंसोलिडेशन में भी कोई नहीं है इन गॉट दैट। इट। सो यू आर द फर्स्ट, यू हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज अभी, कि मतलब यस, करेक्ट। यू कैन
provide one stop shop for all of these services फॉर ऑल ऑफ दीज to सर्विसेज। these car dealers. So in और the next, बड़ी टेलर्ड एंड कस्टमाइज सर्विस है जी। आपको अब जैसे हाँ, तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं लेनी किसी कंपनी की, राइट? आपको तो बोलना है जी मुझे तो सिर्फ वारंटी की सर्विस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई और हाँ, सर्विस। तो यू कैन टेक द हम्म, इंडिपेंडेंट सर्विस आल्सो। तो आप बाउंड नहीं होते हो बाकी अदर ब्रांड्स की तरह कि नहीं यार आई विल हैव टू पे अ वेरी वेरी हैवी फीस एज ऑल, आपको रॉयल्टी शेयर करनी, ऐसा कुछ नहीं है अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे। इट्स लाइक वेरी क्लीन ट्रांजेक्शन वी आर डूइंग इट। got it। तो मतलब आप सिर्फ वैल्यू पे फोकस कर रहे हो अभी कि मतलब ये वैल्यू देनी है हमें, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या वैल्यू बना सकते मतलब हैं, आप ये अभी मान के हमें चलिए डीलर को हमने वैल्यू देनी एप्लीकेशन को अपनी 2 महीने पहले लॉन्च किया था। मतलब टेक बनने में टाइम लगता है पूरा, राइट? है, ऑफ है ना? कोर्स। एंड हमने 2 महीने, 2 या 3 महीने पहले कंपनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। वी हैव 1500 डीलर ऑन आवर एप्लीकेशन। मतलब या, नीड यूज चीज की इतनी है ना? बाकी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है जी, आपने एक चालान चेक किया, 4 एडवर्टाइज आ हम्म, गए, है ना? हम्म, डिफरेंट डिफरेंट। हम्म, क्लीन एप्लीकेशन है, कोई एडवर्टाइज नहीं आएगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। आपने कितने भी चालान चेक करे, कितने भी वाहन चेक करे, कुछ भी रिक्वेस्ट किया, वी विल डेफिनेटली हम्म, हेल्प यू। हम्म, और अपना एक डीलर जो हमारे साथ 100 ट्रांजेक्शन कर रहा है वर्सेस एक डीलर जो एक ट्रांजेक्शन कर रहा है, हम दोनों को उतनी ही सिंसियरिटी से डील करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ फैसिलिटेट या, करते हैं। बिकॉज वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आया, ही इज लाइक अ गॉड टू मी। मतलब मैं उसके लिए कुछ भी या, करूँ टू एट सर्टेन एक्सटेंट। या, तो दिस इज दैट्स वेरी कि कमेंडेबल। यार हम डीलर के लिए, डीलर इज अ गॉड टू अस, डीलर एंड कस्टमर अगेन। तो हम इंश्योर करेंगे सारी चीजें। Got it. So you'll make dealers' lives easy, and in that process, you'll make your own company valuable. करेक्ट करेक्ट So in करेक्ट। realistically, well, because I don't have an idea about this, so realistically, based on your TAM in India, what do you think would be the possible valuation eventually, like let's say 3 to 5 years down the line? तो आप आप जो अभी के टारगेट करना चाह रहे टॉप, हो, या आप अभी के टॉप ऑटोमोटिव यार, वैल्यूएशन वैल्यूएशन देखो हमको समझ नहीं आती। वी आर आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी रियल मैं धंधा तो बैक। मैं तो धंधे वाली बात कर रहा हूँ, हाँ, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आपने मतलब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अभी आप 1500 डीलर पे हो, जिस दिन आप 1 लाख डीलर्स पे पहुंच जाओगे आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं उसी राइट? आंसर पर आ रहा हूँ, उसी आंसर पर आ रहा हूँ। तो हाँ, यार देखो वैल्यूएशन का गेम तो ऐसा है दोस्त कि हमारे लिए, आई एम कमिंग फ्रॉम, आपने मेरे बैकग्राउंड से समझ में आ गए, कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाँ, धंधा टाइप ऑफ बिजनेस। राइट, धंधा ही होता है देखो सब। या, मतलब एग्जैक्टली, समझो, है ना? सो हमारे लिए अगर आप वैल्यूएशन वाइज समझते हो, आप इंडस्ट्री के 4 बड़े प्लेयर ले लो आज की डेट में, है ना? आप उनकी वैल्यूएशन को क्लब कर दो, ठीक है? बिकॉज इट्स नॉट राइट फॉर मी टू टेक देयर नेम्स, बट आप उन 4 वैल्यूएशन को क्लब कर दो। अगेन देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। वो स्टिल क्यूमुलेटिव ना, कुछ 1 या 2% मार्केट शेयर गवर्न करते हैं। देयर इज अपॉर्चुनिटी इन दी 98% मार्केट, राइट? तो हम्म, आप सोचो वैल्यू कितनी इमेंस हो सकती है अगर हम अपनी सर्विस पे बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं and वो डिलीवरीज कर पाते हैं सो ऑन। तो गॉट इट, वैल्यूएशन का गॉट इंडिया इट। में बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं। दे डू ओनली, मतलब दीज प्लेयर्स का कंट्रोल ओनली 2% ऑफ द मार्केट शेयर। देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर 98% क्योंकि मार्केट। एग्जैक्टली क्योंकि ऑफलाइन बहुत बड़ी मार्केट है, एंड करेक्ट। लाइक वो मतलब स्पिनी वगैरह भी मतलब स्ट्रगल विद द मार्केट बिकॉज ऑफलाइन इज सो लाइक पूरा कार्टेल टाइप का मार्केट है कई जगहों पे, तो सो दे डोंट लेट एंटर स्पिनी। आप अशोक बिहार में जाओ जी, लाइन से डीलर हैं, 1 2 3 4 5 6 वही 7 10 15, वही, राइट? अब सबके साथ, अब सब प्रॉब्लम क्या है ना, कि ट्रस्ट बिल्डिंग है। क्योंकि देखिए एक एरा होता है, मतलब आप जब इंटरनेट को समझते हो काफी डीपली, अब आपको नीड है डिजिटल स्पेस पर मूव करने की, बिकॉज द जनरेशन इज गोइंग टू 100% गोइंग टू बी डिजिटल ओनली। तो यू नीड टू इंश्योर कि यार मैं कैसे अपने डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। नॉट ओनली दी प्रेजेंस, मैं ट्रस्ट कैसे डिलीवर कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। तो वी आर हेल्पिंग डीलर टू डिलीवर ट्रस्ट इन दी मार्केट ओनली। एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात पूछो, तो ये डीलर्स जो होते हैं काफी कैश पेमेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट? तो अब आप जितने भी मतलब देसी धंधे होते हैं इंडिया के, the reason one reason why they don't use an online platform is because they don't want to monitor their transactions. तो करेक्ट। वो गवर्नमेंट टाइम में नहीं आना चाह रहे होते क्योंकि वो टैक्स नहीं देना चाह रहे होते उतना। आंसर देता हूँ, तो इसका आंसर देता हूँ, बहुत रियल एग्जांपल देता हूँ। तो देखो यार, तो आपका मेरे घर प्लेटफॉर्म में, उसको हेल्प करता है या उसको मैं आपको कम्पीट? बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ। मेरे घर में व्हेन दी यूपीआई केम, तो मेरे घर में कोई भी बंदा अलाइन नहीं था इन अ मेडिकल प्रैक्टिस कि हम पेमेंट यूपीआई में लेंगे। मतलब उनको तो क्यूआर कोड भी क्लिनिक पे लगाना अच्छा नहीं लगता था। मतलब नहीं अच्छा लगेगा यार, है ना? हम तो कैश में डील करेंगे या व्हाट्सएवर इट इज। नाउ द टाइम इज केम कि हर बंदे ने अपनी क्लिनिक पर एक क्यूआर कोड लगाया हुआ है, बिकॉज हाँ, ट्रांजेक्शन फैसिलिटी हो सकती है। आप समझो, वर्किंग वर्किंग जनता भरने वाली है, नंबर भर रहा है उनका, राइट? पीपल आर मूविंग फॉर दी यार ई कॉमर्स वाला बैकग्राउंड, किया जी हमारे पास तो ई कॉमर्स से इनकम आ रही है। या फिर हम क्रिएटर बन रहे हैं, मतलब सोचो कितने क्रिएटर है हमारे हमारे देश के अंदर, हम्म, राइट? तो इकोनॉमी डिजिटलाइज होती जा रही है।
पैसा सब साफ होता जा रहा है। तो अब आपके पास जी ऑप्शन ही नहीं बचता। कस्टमर, आप बोलोगे जी कस्टमर से मुझे कैश दे दो, वो कहेगा कि जी मैं 5 लाख रुपए बैग में लेके आऊंगा तो बैग भारी हो जाएगा, मैं तो आपको यूपीआई करूंगा इन दैट मैनर। सो या, हम कोई भी हम्म। इलीगल ट्रांजेक्शन में हेल्प नहीं करते, बट वी सजेस्ट टू आवर डीलर पार्टनर्स एंड एवरीथिंग की सर यू हैव टू बी डिजिटल। आप नहीं होगे क्योंकि आप समझो, i20 आपने तो बनाई नहीं है, आप नहीं दे पाओगे तो जी आपके बगल वाला दे देगा। अब या हम्म। तो आप अपनी गाड़ी को होल्ड कर लो जी, मैं 4 महीने बाद बेचूंगा, तो जी 4 महीने में आपकी गाड़ी डेप्रिशिएट हो गई, या आप 4 महीने में फैसिलिटेट कर दो ट्रांजेक्शन। So it's a business हम्म। wise call. Yeah, that happened. So we do not support any dealer in such activities, but we suggest them कि you'll have to come on the digital transactions. यार digital footprint तो होना चाहिए transaction का। Okay, got it. That makes sense. And I think I'm over my time. You're already a busy person. It's already Saturday. So I don't want to, like, I want to respect your time. I don't want to take more of what I asked for. But, I'm really happy to have you on my podcast. I enjoyed a lot speaking to you. And there were so many things, so many important things that you touched upon in your journey. And I truly, truly hope that I see Motorpedia succeed exponentially so that I can always come back and show people this episode that Thank I got you on board when nobody, like not many people had gotten you on their podcast. So that is going to be my achievement for me. And having said that, is there anything that you would like to say to end this episode on, like any ending note for budding entrepreneurs or employees, whatever you यार, feel? बहुत सिंपल सा यार, मतलब देखो, मैं तो हर चीज में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, मतलब एक्सेप्शनली, मतलब किसी चीज में मेरे को, मैं पेसिमिस्ट होता ही नहीं हूँ। बट मैं, मेरा सजेशन सबको यही है यार, स्पेसिफिकली फॉर दिस जनरेशन, कि राइट, अगर जी आप टीयर 2 टीयर 3 में हो तो आप कोशिश करो अपने शहर से बाहर निकलने की। नॉट बिकॉज कि आप घर छोड़ना नहीं चाहते, बट जी आपको अपना सर्कल तो बड़ा करना पड़ेगा, है ना, अगर आप लाइफ में किसी भी चीज में एक्सेल करना चाहते हो। डिजिटल टाइम है, आप जितना डिले करोगे आप समझ लो जी उतना ही पीछे होते जा रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शहर से आगे निकलो। बाकी यार जो वर्किंग क्लास में यार, मतलब एवरीवन स्मार्ट टू डू, बट इट्स यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर असाइनमेंट। मतलब मेरा बहुत मानना है यार, मतलब मतलब आई रियली वैल्यू शाहरुख खान, नॉट बिकॉज ही इज डूइंग एक्टिंग इन, जस्ट बिकॉज कि यार उनके लिए भी सेम फिलोसफी, दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, कि यार ये असाइनमेंट मेरी लाइफ में लास्ट असाइनमेंट है। इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, मैं इसमें बेस्ट कर लेता Hmm. हूँ, अगला आएगा तब देखेंगे। तो यू हैव टू बी Yeah, ऑन विद योर असाइनमेंट की जी मुझे मिला है, मुझे नहीं पता ये अगला मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं इसमें एक्सेल कर लेता हूँ तो शायद मेरी लाइफ बदल सकती है। एंड ट्रस्ट में यार, मतलब ओसामा, यू वोंट बिलीव कि यू नीड जस्ट ओनली वन ब्रेक टू बी, exactly. मतलब तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर असाइनमेंट, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप नहीं हो तो आप मान के चलो कहीं ना कहीं आप हिट करोगे, Hmm. मतलब कहीं ना कहीं हिट आएगी आपके ऊपर। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर असाइनमेंट, आप कैसी भी जॉब में करो, मतलब यार वही है ना, कोई आपको 10,000 दे रहा है तो आप जी 20,000 का काम करो, नॉट बिकॉज किस कंपनी को फायदा हो रहा है या फिर आपके मैनेजर का काम आसान हो रहा है, जस्ट बिकॉज बिकॉज यू आर इन दिस पेज की जहाँ आपको सिर्फ 200-300 डॉलर मिल रहे हैं, बट आपने जो काम किया है, आपकी लर्निंग इतनी इमेंस हुई है ना, कि आप जी 2 साल में आप 2 लाख लोगों को पीछे कर सकते हो। बट अगर Hmm. लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आई एम प्रेटी श्योर नहीं करने वाले हो, मतलब यू हैव Hmm. टू कीप एडिंग वैल्यूज टू योर रिलेशनशिप्स, टू योर नॉलेज एंड सो ऑन। Yeah, दिस इज I completely agree. I completely agree. I think that's very well put. And matlab, I think you need, this is what I keep telling everyone also that I meet, कि ईमानदारी से काम करो, बाकी सारी चीजें बाद में। और Like, मैं तो एक क्लास आपके प्लेटफॉर्म पे एक सजेशन दूंगा, मतलब टू एवरीवन। please, हाँ, आप tell किसी me. भी जॉब के अंदर हैं, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बताइए। हाँ, आप किसी भी जॉब के अंदर है ना, आपके ब्रेन में इकोनॉमिक्स क्लियर होनी चाहिए जी। आप लेट से इधर यू मेक अ 10,000 रुपीज अ मंथ और टू 100,000 रुपीज अ मंथ, बट यू हैव टू इंश्योर कि अगर मेरे को एडिशनल 5,000 कमाने तो मैं कैसे कमा सकता हूँ। आपके मन हाँ, में छोटे छोटे आइडियाज आएंगे, आपको लगेगा जी मैं कार्ड खोल लेता हूँ, इसमें 50,000 रुपये लगेगा, डेली खर्चा इतना आएगा, तो आपके ब्रेन में ना ये इकोनॉमिक्स चलती रहेगी। वो आपको, हो सकता है आपको फ्यूचर में अगर बिजनेस करना हो तो डेफिनेटली हेल्प करेगी, और नहीं भी करना है ना तो आप जॉब में भी काफी ज्यादा एक्सेल करो। मतलब यू हैव टू कीप right. थिंकिंग यार, मतलब कैसे कर सकता हूँ मैं, मतलब कैसे, अगर मुझे 5,000 रुपये एडिशनल कमाने ना, मैं कैसे कमाऊँ, मैं क्रिएटर बन जाता हूँ, मैं यूट्यूब, मतलब कुछ और कर लेता हूँ। यू हैव टू कीप थिंकिंग, दिस इज माई Yeah, सजेशन टू। I completely agree. I completely agree. मतलब वो चुल जरूरी है, वो हाँ हाँ, चुल होनी बहुत जरूरी है कि कुछ तो करेक्ट, करना है। कुछ कैसे तो करना करना है है, ये नहीं पता, कैसे बट करना है, करना है। करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट। आई थिंक उसी जर्नी में फिगर आउट करते हो ना आप फिर कि कैसे होगा। कैसे होगा, जब आपके मन में आ गया कि कैसे होगा, देन तो फिर कोई आंसर ही नहीं है किसी चीज का, मतलब आपके मन में आ चुका है ना,
तो आप या तो अपनी जॉब में भी आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचने वाले हो, या फिर किसी हाँ। और वर्टिकल के अंदर उसमें आप एक्सेल करने वाले हो, अगर आपके मन में ये कैसे वाला पॉइंट आ गया। और मतलब हाँ। यार फेलियर तो देखो सबके हैं, मतलब मान के चल दो आप नहीं फेल हो रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, फेल हो रहे हो ना तो ऐसा नहीं, इसको कंटिन्यू परसिस्टेंट करो। फेल हो गए आज खत्म करो, हाँ, मतलब खत्म करो, कुछ और करो। जो करो, मतलब हो गया फेल हो गया यार, इट्स ओके। मतलब हाँ, मतलब वही। मेरी तो बंद दरवाजे के रिलेशनशिप सामने रोने फेल का हो कोई गई फायदा मेरे नहीं है, को। दूसरे दरवाजे पे खटखटाओ। हाँ हाँ, मतलब मेरी रिलेशनशिप फेल हुई, फाइनेंशियली वीक पड़ा, एजुकेशन थोड़ा स्पॉइल हुई, बट इट्स ओके यार, मतलब मेरे को तो हर कुछ भी जर्नी हो। बढ़िया लगती है मेरी। मतलब So I completely agree with that, but thank you so much. I think that's a great note to end the episode on. I will stop the recording now. या